So if your machine don't have the GPU, then you are not able to learn the deep learning models. Then you have to use either the Google Colab, or you have to go the Amazon AWS, Amazon Web Services, AWS server पे आपको run करना पड़ेगा, or you have to run on the Kaggle. So you have all the options. You can go and train your model any of these of three options. Training and interface time. Machine learning models are simpler as compared to deep learning models. Okay, but deep learning models are more complex. It is going to take a lot of time to train. So training time is much higher as compared to the machine learning algorithm. If you keep on adding more and more layers in deep learning models, neural network models, so it is going to become more complex. It is going to take more time to train. So conventional machine learning models are easy to train. It takes less time, but deep learning models are going to take a lot of time. So here you can take the comparison training time. So this is deep learning. This one is deep learning. So here you can see this is accuracy on the higher side and the time is on the less side. Random forest. This is random forest. Accuracy on the lower side. Also more or less the same time, but the accuracy on the lower side for the distributed random forest. Same your generalized data model, H2 ensembling model is on Naive-Bayes theorem. So Naive-Bayes limited accuracy and less training time. So here you can say in terms of accuracy is deep learning is on the higher side, okay, but in terms of training, but as compared to other models like this is your classifier boosting, this is boosting trees. Boosting trees is having the higher time and the less accuracy. So in that case, deep learning is going to give you the good result as compared to other different model machine learning algorithm, boosting algorithms, or other ensembling algorithms. So as combined, whether it's the boosting techniques or the ensembling techniques or the normal machine learning algorithm, deep learning is always going to overcome them in terms of training time, okay, or in terms of training times maybe higher, but accuracy will be always on the higher side for the CNN models, or you can say artificial neural networks. The most important aspect in case of deep learning is the feature engineering. So feature engineering is very important factor in case of machine learning, because and learning or feature engineering needs your domain knowledge. If you have the domain knowledge, then you will be able to create more and more, you know, efficient or the good kind of features that is going to help your model to learn complex pattern from your data. So that was the inherent for the machine learning algorithms. So you have the good features, then you will have the good machine learning models. But in case of deep learning, more or less, this limitation is overcome. Let's say if you don't have domain knowledge, okay, so in that case, deep learning models or your neural networks make your life easy, because you need not to go and manually do the feature extraction or the feature engineering. So this work is automatically handled by your deep learning models or the neural networks. In that case, your features are extracted or feature are engineered by the neural network itself, okay. For each and every layer, you are going to have more refined features, and ultimately you are going to make the classification or regression on the feature that is your refined features, or you can say the more interesting features. But this is not always the case. But if you are going, if you have the domain knowledge, and you at the very first instance before using the deep learning model, if you can do the some feature engineering, that is certainly going to help your deep learning model, okay, because you are helping your deep learning model. So the kind of the work that your machine learning model or deep learning model has to do, you are doing it manually. So if you have the domain knowledge and you are doing the feature engineering beforehand, then certainly your deep learning model is going to make the progress, okay. So it is not that in case of deep learning you are not going to do any feature engineering. It is going to help you, okay, because a lot of work is not to be done in the deep learning in case of feature engineering. But yes, if you have the domain knowledge and if you are capable to do the feature engineering, then certainly it is going to help the deep learning. So this is not entirely true that you need not to have the feature engineering, manual feature engineering deep learning. But yes,
the proportion of the machine learning, the proportion of the, you can say the effort is reduced in the deep learning, because most of the times the deep learning model itself learn the more interesting features. Okay, let's say in case of, let's say, image I am working on, so I can have the deep learning model to find out the interesting feature from the images. So I can work on the pixels, I can do the augmentation for my data, I can do different kind of scaling or something different things, I can work on my images. In the same way I can make the interesting feature on the text. Okay, if I am making interesting feature of the text as respect to the raw text data, because I'm just giving the raw text data, then my model is not going to learn the interesting features. So yes, I am going to work on the feature engineering, but I am going to make the feature in a such a way that my model is going to have them to understand the more and more complex feature that traditional machine learning was algorithm was not able to learn. Okay, so certainly feature engineering is not removed, but yet it has been reduced. We will see what kind of feature engineering is needed in deep learning and what kind of feature engineering is not needed in deep learning. So this is a comparison of the data. Data requirement, large data, accuracy, high accuracy, training time, larger, complexity, more complex, hardware, GPTU, readability. So this is kind of a black box. Deep learning is considered as a black box. In machine learning algorithm, you have straightforward algorithms, and you know at which step actually what is happening behind the scenes. You know end to end you can say end to end working of the algorithms. But in case of deep learning, for each and every layer, actually you don't understand what actually each and every learn model or each and every layer is doing. Just consider that is, let's say, as a human, I am able to recognize each and every face on the planet. But if someone asks me how you are able to do so, so I cannot explain. So this is a kind of, I am able to do the thing, I am able to recognize each and every face, I am able to, as a small child is able to learn any language. But if you ask him or her, he will not able to explain you. So this is a kind of black box. In the same way, the deep learning works in the same way. It is able to do the things, but most of the times it is working as a black box. I have the input, I have the output, and I know that I can improve the output. But behind the scenes, for each and every steps, what is happening, I am not able to understand it. Okay, I can have the intuition of the same, but I am not 100 always 100% true actually what is happening behind the scenes at each and every steps. That we will see in the detail why I am saying that it is not readable or it is more complex to understand. Hyperparameters, in deep learning we have a lot of number of hyperparameters. In machine learning you have seen not more than 4 or 5 hyperparameter for a single algorithm. I think not more than 2 or 3. But in case of deep learning we may have 20 to 25 hyperparameters, maybe more. Okay, sometimes it reaches around 50 hyperparameters. So in that case, a lot of hyperparameters to be tuned. So deep learning models require a lot of time to train the models. Feature engineering, extensive in case of machine learning. Here we need a very little feature engineering in case of deep learning. So this is kind of theoretical part. Now let's go to the bigger part. So popular deep learning framework for computer vision, we have the CNN, that is convolution neural network. For your NLP part, we have the recurrent neural networks. In your recurrent neural network, we have LSTM, we have GRUs. In CNN, we have different. We have efficient net, we have dense net, we have exception, we have perception. A lot of nets are there. This is generalized neural network. This that we call ANN, artificial neural network, or feed forward neural network. Okay, a lot of names are there. We also came them deep neural networks or shallow neural network. A lot of names are there. Okay, so this is generalized. We can use this artificial neural network for variety of the problems. We can apply on the computer vision. We can also apply on the NLP. We can also apply on the regression problem, classification problem, all the problems. But yes, artificial neural networks
has a limitation in terms of the accuracy. So we have different architecture for RNN, that is called the CNN. And for the NLP, we have a different kind of ANN that is called CNN. But actually they are the neural networks, but they are basically architecture is different. So we also have an auto encoder, we have the general adversarial networks, we have reinforcement learning. They are the different kind of architecture for the neural networks only. So we are going to learn them one by one. So this is machine learning to deep learning, raw input, manual feature engineering. Features are created, traditional machine learning algorithm, output. Here this part is more or less gone, the feature engineering part, very minimal requirement for the feature engineering, and we have the output. So now the real fun begins. So what is actually a neural network? So neural network word actually coming from the human brain, because human brain is actually having a neural network. We have specialized brain cells that we call neurons. Okay, and our brain is actually just a combination of, or you can say a graph of neurons. All the neurons are actually connected to each and every other neurons, and we have, I think, more than thousands of billions of neurons in our brain, and each and everyone is connected to each and everyone most of the times. Okay, many to many connections are there, and information are actually stored in our brain, and all the processing is happened in our brain on the basis of these connections. So these are called the neurons. That is actually natural neurons that we call neurons. So if you see here, this is a neuron of our brain. This is are the dendrites, from where it is connected to other neurons, or you can say it is getting information, that is kind of input. It is taking input from the other neurons. Okay, this is nucleus where the capture information is processed. It, you can say, the brain of the neuron, or you can say CPU and the neuron, center processing unit. This information is flowed through the axon, and these are the axon terminals which are actually connected to the other neurons. This is where the information is coming, processed, and output is passed to the other neurons. So this is the biological diagram of a neuron. So bilkul exactly in the same way we have designed our neural network, artificial neuron. This is artificial neuron. This is more or less same as the neuron from our brain. This is the information coming. Okay, because synapse. Okay, we have the multiple information, multiple input, x0, x1, x2. Okay, this is my cell body. Okay, here the processing is happening. Okay, and I am getting the information output to the other neurons, other artificial neurons. So this circle is called the cell body. This is just like a nucleus of my neuron. Okay, so here the different information is coming from the different neurons. Let's say this x0, x1, and x2. Okay, let's say this is coming from one of the neuron, this is coming from the another neuron, this is coming from the, let's say I am getting the information for different input set of the data. This is first input, second input, third input. Let's say I have 3 connections to this artificial neuron. So for each and every neuron, I am going to connect one weight. Let's say this is W0, this is W1, and this is W2. So I am getting the input X0, X1, and X2. For each and every input, I am going to connect one weight, W0, W1, and W2. This is cell body. This is actually having 2 parts. One is functional. You can say net function. We call it net function part. And second is called the activation function. The second function. The first function is just doing nothing. It is just summing them up. Wi xi. This is W0 x0 plus W1 x1 plus W2 x2. So this function is just summing them up. So first net function is going to give me W0 x0
W1 X1 plus W2 X2. This is my net function, this part. The second function is my activation function. That is actually going to decide whether this information is going out from this neuron or this is not going to out of the neuron. If it is going out of the neuron, then what will be the information I will be sending? Whether it is complete information I am sending, whether it is a fraction of the information I am sending, or should I transform the information that I am sending? So this is the activation function that is working on this net function, and this finally coming out of the neuron, that is your output. This activation function is actually can be your sigmoid function, your 10H function, your ReLU, your leaky ReLU. A lot of activation functions are there you can use. But this is the architecture of the artificial neuron, where we have the input, where we have the cell body, where I am actually working on the data. It has two parts, the net function and the activation function. Then I have the output that is going to be in the other neuron. This information is coming from the neuron, and again this is going to the next neuron. So more or less it is working as a natural neuron that is on a brain. And that is why in the deep learning we are just going, or we are trying to mimic the functionality of our brain. So the kind of machine learning algorithm actually that was a humanly designed, okay, and in that case we were not able to excel in kind of the problem which were actually limited, not limited to the human competency, let's say computer vision or learning of any language. So then both the things actually we have learned from the evolution. And evolution is just kind of, you can say, a different mechanism that is not limited to human intelligence, that is hardwired to human brains or hardwired to human genes. So in that case, that kind of information actually cannot be transferred from person to person. So we have to learn in that information. If you want to learn that particular knowledge, so we have to learn in an abstract way. So in that case, we are just trying to, how actually our brain is functioning, we are just trying to mimic that functioning, and we are trying to make the same, you can say, you can say the basic unit of learning is a neuron. So we are just trying to build first basic unit, and my first basic unit is an artificial neuron. And the second thing is that how actually these neurons are connected, because the connection of actually these neurons are actually making the learning. This is the basic unit, but they are actually the connections of their graph which they are making in our brain. They actually we are calling the brain. Brain is nothing but the graph of these neurons. The second part is how actually these are the connected, because their connections are actually the learning. So second part, we are going to make a neural network using this basic unit, that is artificial neuron. So this is the artificial neural network that we have achieved as of now. That is our fundamental part. That is the more or less the architecture of the neural networks. It may or may not be as robust or as efficient to the human brain, but yes, we are in the right direction, and we are having at least a basic structure of the human brain, so that we are able to achieve that kind of efficiency, okay, in the complex problem where the machine learning algorithm was not able to do so. So artificial neural network is actually made of the basic unit that is called the artificial neurons, that we have seen the basic architecture of the artificial neurons. So each and every neuron is connected to each and every neuron. We are having a many-to-many graph, first thing, and we are having a layered approach. This is my input layer, where actually I am capturing the input. That is, you can say, the dendrites of the natural neuron. Okay, then we have the hidden layer that I call the processing unit. Okay, that I call, that's the, you can say, the nucleus of my cell. These are actually my learning, and these are actual layered approach. First layer, second layer, and this is my output. You can say this is my axon, where actually I am throwing my output.
Okay, this is my axon, and this is my output. This is my output flowing to the other neurons. So here each and every, this one, these are actually neurons. Each and every, you can say this circle, this is representing a artificial neuron, and each and every neuron is connected to each and every neuron, and each and every neuron is actually the basic unit that is having basically input. This is input, this is output, okay, and this is your nucleus where it is working, where it is having two part, net functions plus activation functions, NF and AF. So each and every neurons is getting input from each and every neuron, and each and every neuron is giving information to the next subsequent layer. So let's say I am working on this particular layer. So in this particular layer, each and every neuron is getting input from the each and every neuron behind this layer. So output from this layer is connected to each and every subsequent neuron. In the same way, the output of this neuron is connected to each and every subsequent neuron. So this is the layered approach for the artificial neural network. This is input, this is output, and this is actually called the hidden layers, and we also call this processing layers, actually where the information is being learned. Any confusion till here? यहाँ तक कोई confusion है? This is called the artificial neural network. Any confusion? Okay, so we are good. So before going for the artificial neural network, let's concentrate on the machine learning algorithm that we have not covered. That was called perceptron. It's the artificial neuron. Or this was actually the inspiration for the artificial neural network. We have actually gone many steps forward, but the basic thing is the perceptron. We are actually working on the perceptron, and we are using a lot of perceptrons. We have augmented the perceptron learning. Now we are going to for the artificial neural networks. So this is perceptron is a neural network unit, artificial neuron, this one, that does certain computations to the detect features and business intelligence in input data. Perceptron is a supervised learning algorithm for binary classification. आपकी binary classification में use होती है. The algorithms enables neurons to learn and process elements in the training data sets one at a time. तो ये क्या करता है आपका? Let's say this is actually my perceptron. Perceptron के पास, let's say it is taking the input. Let's say there are three inputs, x1, x2 and xsum से लेके xsum तक inputs हैं उसके पास. Okay, and this is your biased. अगर आपको याद होगा तो हम each and every algorithm में लोग biased unit लेके चलते थे. Biased. So this is just biased. Theta 0 you can say. So for each and every input we have the weight associated. This is theta 0, this is theta 1, theta 2 and theta m. Okay, so what the perceptron is actually going to do? Perceptron is actually first is the net activation, or you can say net function, and second is the activation function, AF. Okay, these are the input, these are the weight assigned for the input, this is the sum or your net function. This is, I am applying the non-linearity, that we'll see what is actually the non-linearity. This is our activation function, and this is our output. So what is this function, the sum function is doing? This is just summing all up wij xi. So this is just theta 0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2 plus theta 3 x3 plus theta m x1. This is your net function. And what the activation function is doing? This is just doing the, you can say, non-linearity, any sigmoid, tan h, whatever you want to use. That is called the activation function. This is output. So this is the perceptron, and perceptron is going to give me the linear classification. So this y is actually the output is, let's say I have given the 0.5 is the, let's say the classification problem. Your output is, if your output is greater than 0.5, then I will call it as a positive class. If the output is coming less than 0.5, then it is a negative class. So this is a perceptron for the binary classification.
I am giving all the features to it, okay, and this is going for the functioning. And if output, that output probability that your output is coming as greater than 0.5, then it is a positive class, otherwise negative one. This is a perceptron for the binary classification. The same concept perceptron में लर्निंग कैसे होती है. Let's say this is my perceptron, okay, और मेरा आउटपुट क्या है, my output is binary. If w.xp is greater than 0, okay, w.xp यानी this one, okay, अगर मैं इसको सिग्मॉइड लगा दिया, then it is, ये आपका क्या बन जाता है, it becomes, if your जो आपका आउटपुट यहाँ से आ रहा है, if it is greater than 0.5, then it is positive class यानी कि 1, if it is less than 0.5, then it is 0. आपके सिर्फ नेट फंक्शन है, okay, and this is your एक्टिवेशन फंक्शन के बाद का जो आउटपुट है. अगर आउटपुट आपका 0.5 से ज्यादा आ रहा है, then it is positive, 0.5 से हमारे नेगेटिव फंक्शन. अब यहाँ पर आप लॉजिस्टिक में आप कैसे काम कर रहे थे, हाउ एक्चुअली लॉजिस्टिक योर लर्निंग वाज हैपनिंग. लेट्स से आपका आउटपुट जो है आपका 1 आना चाहिए था किसी के लिए, ओके, लेकिन आपका आउटपुट क्या आ रहा है, आपका आउटपुट लेट्स से उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.6. सो देन इन दैट केस यू हैव एन एरर. आपकी एरर कितनी है, अगर आपको एरर याद होगी तो हम वहाँ पे एरर कैसे निकालते थे, और एरर वाज लॉग लॉस फंक्शन था हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन में. log loss function for binary classification क्या था हमारा, that was minus y log s theta x minus I think 1 minus y log 1 minus s theta x. ये हमारा log loss function था binary classification के लिए. तो सेम आपका यही सेम log loss function आपका जो था perceptron में. तो आपका जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, ओके, आप इसको डिफरेंट इनपुट इसको देते जाओगे, और ईच एंड एवरी डाटा के लिए आप क्या करोगे, जैसे लॉजिस्टिक में आपका लॉग लॉस निकालते हैं, सेम तरीके से आप लॉग लॉस निकालोगे. और लॉग लॉस जो आप निकालोगे, तो आपका जिस लॉग लॉस के हिसाब से आप क्या करोगे, लॉग लॉस को कम करने के लिए यू आर गोइंग टू एडजस्ट दिस वेट्स. आप इस वेट को इस तरह से एडजस्ट करोगे बेसिकली कि आपका जो लॉग लॉस है, अगर आपकी 1 है तो 1 आउटपुट आना चाहिए, अगर आपको नेगेटिव क्लास है तो आपका आउटपुट 0 आना चाहिए. अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो हर बार आपका लॉग लॉस जो आपका इंक्रीज होता चला जाएगा. तो यू वांट टू मिनिमाइज दिस लॉग लॉस. उस लॉग लॉस को क्या करोगे, आप इस वेट को एडजस्ट करोगे. तो यू आर गोइंग टू एडजस्ट दीज वेट्स इन सच ए वे कि बेसिकली आपका लॉग लॉस मिनिमम हो जाए. जहां आपका लॉग लॉस मिनिमम हो जाएगा, कन्वर्ट जो आएगा आपके एल्गोरिथम, वो आपके वेट जो है वो आपके फाइनल हो जाएंगे, एंड इट इज योर फाइनल मॉडल. So logistic regression ही है basically. If you say perceptron is more or less kind of a logistic regression kind of thing, okay, but it is actually we have the activation function log loss, this one more or less आपका एक तरह से अगर आप मैं देखूं मेरा perceptron more or less किस तरह से काम कर रहा है, मेरा perceptron more or less एक logistic unit की तरह काम कर रहा है, logistic unit. सर एक बार ये बता दीजिए एक्टिवेशन फंक्शन क्या कर रहा है. एक्टिवेशन फंक्शन तो सिर्फ जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को अगर मैं सिग्मॉइड लगाऊंगा तो 0 से 1 के बीच में लिमिट कर देगा, ओके. अगर मैं 10h लगाऊंगा तो -1 से 1 के बीच में लिमिट कर देगा. तो ये उसको हम बोलते हैं, अगर मैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के टर्म में बोलूं तो बेसिकली मेरा यूज होता है नॉन लीनियरिटी के लिए. अगर मैं लॉजिस्टिक के टर्म में देखूं तो लॉजिस्टिक क्या करता था, आपके आउटपुट को 0 से 1 के बीच में लिमिट कर देगा. And actually it was your probability, right? It was your probability. And if your probability is greater than equal to 0.5 तो आपका पॉजिटिव क्लास हो जाती थी, 0.5 से कम है तो नेगेटिव क्लास हो जाती थी, right? Exactly same है. So आपका परसेप्ट्रॉन में ही काम कर रहा है. अगर मैं सिग्मॉइड, परसेप्ट्रॉन आपके सिग्मॉइड यूज होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन. दिस इज योर सिग्मॉइड, okay? So in that case your perceptron is actually working as a logistic unit. So if I say कि जो मेरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो मेरा आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है, that is actually a perceptron or actually it is a logistic unit. आपका each and every artificial neuron, अगर मैं यहाँ पे sigmoid function यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे sigmoid या कुछ और भी यूज कर सकता हूँ. अगर मैं sigmoid यूज कर रहा हूँ तो more or less each and every basic unit or you can say a very artificial neuron is actually working as a perceptron or a logistic unit. So ये आपका each and every neural network में each and every आपका जो न्यूरॉन है आर्टिफिशियल न्यूरॉन, इट इज एक्चुअली वर्किंग एज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट. सो अब हम एक बार हम कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क देखते हैं. हमने देखा कि आपका एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन कैसे काम करता है. आर्टिफिशियल न्यूरॉन इज एक्चुअली वर्किंग एज अ मोर लेस आपका इट इज वर्किंग एज अ सिंगल न्यूरॉन. अब लेट्स से मैं उसको
एक्सटेंड कर देता हूँ, लेट्स से मैं सिंगल एक सिंगल न्यूरॉन लेता हूँ, दिस इज माय सिंगल न्यूरॉन, ओके। x1 x2 x3 मेरे पास इनपुट आ रहे हैं, ओके, x1 x2 एंड x3। फर्स्ट मेरा नेट फंक्शन मेरा क्या करेगा, इसको थीटा tx कर देगा, बिकॉज दिस इज थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2, सो दिस इज z इज इक्वल टू थीटा t, और अल्फा पे क्या काम करेगा, इसको बस सिग्मॉइड लगा देगा थीटा 0 के ऊपर। सो फाइनली मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में लिमिटेड हो जाएगा। दिस इज माय परसेप्ट्रॉन, ये मेरा परसेप्ट्रॉन का एग्जांपल है। या इसको नॉर्मल टर्म में देखो, जो मेरा W क्या है, W2x प्लस B, B इज नथिंग बट दिस, एक मेरी बायस यूनिट आ रही होगी यहाँ पे, बायस जिसको मैं बोल देता हूँ बायस, तो इनपुट है, तो ये आपका ये थीटा 0 इसके साथ आएगा, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, तो आपकी बायस्ड हो गई है, ये आपका नॉर्मल W2x हो गया, तो उसको मैंने सिग्मॉड लगा दिया, और सिग्मॉड के बाद फाइनली मेरी ट्रेनिंग कैसे होगी, लॉस फंक्शन। मेरा लॉस फंक्शन मेरा क्या डिसाइड करेगा, इनपुट क्या था y, जो मेरा टारगेट वेरिएबल था एक्चुअल, और मैंने क्या प्रेडिक्ट किया, ए इज माय प्रेडिक्शन, ओके। लेट से मेरा एक्चुअल में पॉजिटिव क्लास होनी चाहिए थी, और मेरा जो आउटपुट आ रहा है 0.2 आ रहा है, सो आई हैव लॉस फंक्शन, लॉस आ गया मेरे पास, तो लॉस के हिसाब से मेरा परसेप्ट्रॉन पूरा ट्रेन होगा। सो दिस इज सिंगल न्यूरॉन। अब मैं मल्टीपल न्यूरॉन्स यूज करके आई एम जस्ट गोइंग टू मेक माय फर्स्ट बेसिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मेरे पास इनपुट हैं, 3 इनपुट x1 x2 and x3। I have created first hidden layer, this is my first hidden layer, I am having only, मैं कितने न्यूरॉन्स रख सकता हूँ, अभी मैंने सिंपलिसिटी के लिए आई एम जस्ट टेकिंग 3 न्यूरॉन्स, फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन्स एंड द थर्ड न्यूरॉन्स, ओके। एंड दिस इज माय आउटपुट न्यूरॉन, दिस आउटपुट न्यूरॉन है मेरा, दिस इज माय फाइनल आउटपुट, दिस इज माय आउटपुट लेयर, यू कैन से दिस इज माय आउटपुट लेयर, this is my input. So here my input is actually connected to each and every neurons. This is connected to this. Second one is connected to this one. This, each and every one is connected to each and every neuron. Okay. So this called this a zeroth layer. So this I will call this convention. So x1 is actually a zeroth layer. This zero, this super script is your actually the number of layer. This is my zeroth layer. Okay, and this is a1, a2 and a3 is input. कौन से न्यूरॉन से आ रहा है, तो दिस इज फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, तो इसको हम बोलते हैं जीरोथ लेयर, ओके। और a1 a2 a3 मतलब 3 इनपुट्स हैं, ओके। इन द सेम वे ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माय a1 फर्स्ट लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन, फर्स्ट लेयर का सेकंड न्यूरॉन, दिस वन, एंड फर्स्ट, ये मेरा आउटपुट है। सो a0 मेरा क्या बता रहा है कि आउटपुट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर, ये मेरा आउटपुट है, ओके। और ये a1 मेरा आउटपुट है यहाँ से, ये मेरा आउटपुट है, दिस इज माय a1 and this is my a2, this is my again sorry a3 first layer out, okay। so first layer का a1 मेरा कैसे डिसाइड होगा, मैं जिसको मैं बोलता हूँ z1 is actually first layer का z1 z2 and z3, z1 एक्चुअली मेरा नेट फंक्शन है, दिस वन w2x plus b। सो W11 मेरा क्या है, W1 मेरा एक्चुअली वेट्स हैं, और मेरे वेट्स कहाँ से आ गए हैं, फर्स्ट के लिए मेरे वेट्स कहाँ से आएंगे, लेट्स से आई एम कॉलिंग इट, मैं इसको बोलता हूँ W1 फर्स्ट लेयर के वेट, फर्स्ट लेयर के। अब इसमें आप अगर यहाँ पे अगर देखोगे, मेरा यहाँ पे x1 से बात करता हूँ, x1 मेरा इसको बोल देता हूँ मैं, लेट्स से दिस इज माय W1, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज जो यहाँ से कनेक्टेड हो रहा है, यहाँ पे जो इस पे जा रहा है, दिस इज लेट्स से W2, और जो यहाँ से इस पे जा रहा है, दिस इज W3। सो फर्स्ट न्यूरॉन को 3 इनपुट जाए, तो मेरा W1 बेसिकली मेरा क्या होगा, मेरा W1 होगा बेसिकली, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो दिस इज W1, W2 एंड W3, ओके। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे इनपुट क्या क्या है, x1 x2 और x3, और ये कनेक्टेड किससे है, फर्स्ट न्यूरॉन से। तो मैं जब बड़े W1 की बात कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली जो मेरा बड़ा W1 है, दिस इज आई विल कॉल, दिस इज माय फर्स्ट न्यूरॉन के लिए, ये जो मेरा है, दिस इज माय फर्स्ट लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन के वेट्स है मेरे, कौन कौन से, W1 W2 एंड W3। सो दिस W11 दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस थिंग, दिस मैट्रिक्स। उसके बाद एक बायस यूनिट आएगी आपकी, ईच एंड एवरी न्यूरॉन पे आपकी एक बायस आएगी, दिस इज माय बायस्ड फर्स्ट लेयर पे, फर्स्ट न्यूरॉन पे, ये आ गई आपकी बायस्ड, ओके। सो ये मेरा आ गया नेट फंक्शन,
दिस इज नथिंग बट थीटा टी एक्स, आप इसको थीटा टी एक्स बोलो, दिस इज थीटा टी एक्स, क्योंकि आपको थीटा टी एक्स समझना, दिस इज जस्ट थीटा टी एक्स। ओके, ये आपकी बायस यूनिट आ गई, ये आपका नेट फंक्शन आ गया। ओके, जहाँ आपके थीटा क्या है, वेट एसोसिएटेड है ईच एंड एवरी इनपुट के साथ, ये आपकी बायस आ गई। इसको मैंने क्या लगा दिया, जी लगा दिया, जो आपका लेट से अभी मेरा सिग्मॉइड फंक्शन है फॉर एग्जांपल, कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है, उससे मेरे निकल के आएगा a1 आउटपुट। तो दिस इज माय a1, दिस वन। ऐसे सेकंड के लिए सेकंड वेट्स होंगे आपके, अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ, दिस इज सेकंड, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द सेकंड वेट्स। तो लेट्स से दीज आर W4, W5 एंड W6। ओके, सो जिसमें बात कर रहा हूँ W12, दिस इज एक्चुअली फर्स्ट लेयर के सेकंड न्यूरॉन के वेट्स, दीज आर दिस वन। उसका ट्रांसपोज ले लिया मैंने, इंटू को थीटा टी एक्स, वेट असाइन आपका वाइस आ गई, उसको बस जी लगा दिया, आपका आउटपुट आ गया सेम तरीके से। दिस इज सेकंड आउटपुट, ऐसे आपका थर्ड आउटपुट। सो मेरा अगर मैं कंप्लीट अगर मैं इसका निकाल के देखूं तो अभी देखते हैं। सो ये मेरा आउटपुट आ गया, दिस इज आउटपुट। तो अगर मेरा इस कंप्लीट को मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट को मैं क्या कर दूंगा आपका इसमें डाल दूंगा, किसमें, इसमें डाल दिया मैंने। ये मेरा भी है नहीं है, ये भी मेरा 4 मेरा है ही नहीं, लेट्स मेरे 3 ही है। तो ये मेरा कंप्लीट, ये मेरा आउटपुट का मेरा मैट्रिक्स आ गया, A11, A12, A13, दिस इज मेरा आउटपुट मैट्रिक्स आ गया। फर्स्ट लेयर का फर्स्ट आउटपुट, फर्स्ट लेयर का सेकंड आउटपुट, फर्स्ट लेयर का थर्ड आउटपुट, क्योंकि 3 न्यूरॉन से 3 आउटपुट आएंगे तो मेरा आउटपुट आ गया, दिस इज माय आउटपुट। ओके, दिस इज माय आउटपुट। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, कंप्लीट मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मेरा कैसे लिखा जाएगा, दिस इज माय कंप्लीट मैट्रिक्स फॉर्म, दिस इज माय कंप्लीट वेट्स। ये मैं W1 की बात करूं, W1, W2, W3, इसका ट्रांसपोज मेरा ये आ जाएगा, फर्स्ट लेयर का फर्स्ट वेट, फर्स्ट लेयर का सेकंड वेट, और ये लेट से यहाँ पे फोर्थ नहीं, लेट से फोर्थ भी मान लेते हैं, अगर फोर्थ भी है तो फोर्थ आ गया मेरा। तो ये तो मेरा हो गया जिसको मैं W बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे फर्स्ट लेयर के कंप्लीट वेट्स आ गए, इस फर्स्ट लेयर के कंप्लीट वेट्स, ये फर्स्ट न्यूरॉन के लिए वेट जो आ रहे हैं, ये सेकंड लेयर के जो वेट आ रहे हैं, इसके लिए भी थ्री वेट्स आएंगे, इसके लिए 3 वेट्स आएंगे, इसके लिए 3 वेट्स आएंगे। ओके, मेरा इनपुट क्या था, X1, X2, X3। बायस ईच एंड एवरी न्यूरॉन पे आपकी एक बायस आएगी। तो फर्स्ट लेयर का फर्स्ट बायस, फर्स्ट लेयर का सेकंड बायस, फर्स्ट लेयर का फोर्थ बायस। तो ये आपका दिस इज थीटा टी, ये आपका एक्चुअली थीटा टी है, ये आपका X है, ये आपका B है। B मतलब आप इसको थीटा 0 बोलो, दिस इज योर थीटा 0। ओके, एंड दिस इज योर Z। अब इसके ऊपर क्या लगेगा आपका, इस Z के ऊपर आपका क्या लगेगा, बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन लगेगा, और सिग्मॉइड फंक्शन लगने के बाद आपका क्या जाएगा, दिस विल कम दिस। सो ये आपकी फंक्शनिंग है आपकी न्यूरल नेटवर्क की। मैंने एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क लिया, इसमें 3 इनपुट हैं, 3 न्यूरॉन्स हैं, और यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका एक आउटपुट है। अब इस न्यूरॉन के लिए मेरे कितने इनपुट हो गए, मेरे इनपुट कौन कौन से हो गए, A1, A2, A3, ये मेरे इनपुट बन गया। दीज आर 3 इनपुट। इन 3 इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास अब क्या होगा, 3 नए वेट कैलकुलेट होंगे। लेट्स से मैं इस वेट को क्या बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इस में कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके Z की कैलकुलेशन कैसे होगी। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, एक्चुअली Z एक न्यूरॉन है, यानी कि सेकंड लेयर का Z। ओके, फर्स्ट न्यूरॉन वो मेरा कैसे काम करेगा, A11 जो मेरे इनपुट आ रहे थे 2, 3, और इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग वेट आएंगे। ओके, लेट से इस वेट को मैं बोल देता हूँ ये आपका सेकंड लेयर का फर्स्ट वेट, ये आपका ओके, ये भी आपका क्या आ जाएगा, सेकंड लेयर का। ओके, सेकंड लेयर का एक्चुअली एक ही न्यूरॉन है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो हम इसको सेकंड लेयर के लिए सेकंड वेट मान लेते हैं। ऐसे आपका यहाँ आ जाएगा सेकंड लेयर का थर्ड वेट, ये आपका आ जाएगा Z। ओके, अब मेरा A2 क्या आएगा, जो मेरा इससे आउटपुट निकल के आएगा यहाँ से A2 वुड बी, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा एक्टिवेशन फंक्शन, किसके ऊपर, Z1 2 के ऊपर। सो दिस विल बिकम माय आउटपुट। तो मेरा फाइनल मेरा आउटपुट जो आएगा Y इज एक्चुअली A2। ये क्या देगा मुझे, प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा, दैट इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैं सिग्मॉइड फंक्शन लगा रहा हूं तो इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1। ओके, अगर ये मेरा 0.5 से ज्यादा आ रहा है देन आई विल कॉल इट इज अ पॉजिटिव क्लास, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ओके, अगर ये लेस देन 0.5 आ रहा है देन इट इज अ नेगेटिव क्लास।
सो दिस इज द फंक्शनिंग, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। अगर मैं इनपुट देता हूँ तो इनपुट में बेसिकली अगर मेरा इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है एंड टू एंड, दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड प्रोपगेशन। वेयर आई हैव गिवन द इनपुट, आई हैव टेकन द वेट ऑफ द डेटा, वेट ऑफ द connections, and I'm just pushing forward with the information, input output and till the output. This is my output. That is called forward propagation of an artificial neural network. ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आई, ये सबको समझ में आ गई है? So this, because first time this seems a little complex, but this is actually a simpler thing. अगर समझ में नहीं आई तो I will take a different example. किसी को है जो समझ में नहीं आया? सर बायस का क्या मतलब एग्जैक्टली मीनिंग है यहाँ पर? बायस का who is that? इसमें बायस का क्या है, लाइक वो अगर रिलेट, अगर हम देखें, मैं चलो इसको क्योंकि आप ये मान के चलो कि ईच एंड एवरी मेरा जो न्यूरॉन है वो किसकी तरह काम कर रहा है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह काम कर रहा है ईच एंड एवरी न्यूरॉन दैट वी हैव सीन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग, अगर आपको याद होगा तो हम बायस या यूज करते थे। बायस का मतलब होता है कि अगर बेसिकली वो आउटपुट, आपका आउटपुट बेसिकली जो बेसिकली इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली हमने हाउस प्राइसिंग में देखा था कि आपके हाउस प्राइसिंग के आपके पैरामीटर्स क्या है, उसका एरिया क्या है, बाकी चीजें क्या है, लेकिन उसका मिनिमम प्राइस हमेशा होगा एक, ओके। जो उसका बेस प्राइस जो बन के चलेगा, उसके ऊपर का प्राइस जो होगा वो आपका डिसाइड होगा आपके फीचर्स के हिसाब से। तो जो आपका बेस प्राइस, ऐसी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है आपको क्लासिफाई करने के लिए, तो आपका डॉग है या कैट है, उसकी एक बेसिक चीज तो उसकी हमेशा होगी जिसको कैट बनाएगी। उसके बाद फिर आप उसकी फीचर्स देके डिसाइड करोगे कैट है या डॉग है। तो बेसिक जो होता है, जो बेसिक जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज आपको आपके बायस से आती है, राइट? अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पर आपका ईच एंड एवरी न्यूरॉन आपका लॉजिस्टिक की तरह काम कर रहा है, तो ईच एंड एवरी न्यूरॉन पर आपकी एक बायस यूनिट आएगी, ओके, जो डिसाइड करेगी बेसिकली इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होगी इस न्यूरॉन, ओके। तो ईच एंड एवरी न्यूरॉन विल बी हैविंग अ वन बायस यूनिट। एनीथिंग एल्स? सर मुझे एक चीज नहीं समझ आया, ये वेट का मेरा मैट्रिक्स जो आ रहा है 4x3 कैसे आ रहा है? ये 4x3 मैंने इस एग्जांपल के हिसाब से नहीं लिया। अगर आपका ये एक्चुअली आपका ये 3x1 आना चाहिए इस एग्जांपल के हिसाब से, जो ये आ गया आपके, ये एक्चुअली 3x3 आएगा, ये 3x1 आएगा, ये आपका 3x1 ऐसा। सर वही ना, क्या नाम है कि फर्स्ट के लिए मेरा ये 3 वेट असाइन कर रहा है, सेकंड के लिए भी 3 वेट असाइन कर रहा है, तो हाँ 3x3 3 आएगा एक्चुअली, 4 नहीं आएगा, ओके। इट शुड बी एक्चुअली 3 क्योंकि आपका 3 है। तो आपका अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपके इनपुट भी 3 है, आपके ये यहाँ पे भी 3 है। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा देता तो फिर आपकी 4 हो जाती है, ओके। ये एक्चुअली ये एग्जांपल है, ये जो उठाया गया 4 के लिए उठाया गया, यहाँ पे 4 न्यूरॉन्स है, इनपुट आपके 3 है लेकिन न्यूरॉन्स आपके 4 है। तो यहाँ से हटा दोगे तो फिर आपके 3 हो गया, ओके, ये 3 आएगा, दैट इज फाइन, ओके। एनीथिंग एल्स? ओके, सो वी आर गुड। सो अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। Let's take a simple example. Let me open this thing. Okay, एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, एक सिंपल सा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम लोग बनाएंगे। Let's say this is x1, this is x2, and you guys are going to help me कि इसमें फॉरवर्ड प्रोपगेशन कैसे होगा आपका। x4 ये मेरा इनपुट है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अब मैं न्यूरॉन्स लगाता हूँ। लेट्स से आई एम टेकिंग 3 न्यूरॉन्स ओनली, ओके। और लेट्स से यहाँ पर मैंने ले लिया 2 एंड दिस इज माय 1 एंड दिस इज माय फाइनल माय आउटपुट। वेरी सिंपल, ओके। अब ये जो होगा, दिस वन इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी वन, ठीक है। तो मैं इससे कनेक्शन बनाता हूँ, लेट्स से ब्लैक से, ओके। इससे कनेक्शन बना देता हूँ मैं रेड से, और इसके लेट से ब्लू से, और इसके लेट से ग्रीन से। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, राइट? ऐसे सेम वे लेट से आपका ये इधर 2 कनेक्शंस बन जाएंगे, देन विल टेक इसके 2 कनेक्शंस आ गए, लेट से इसके भी 2 कनेक्शंस आ गए, ओके। और यहाँ पे आपके सिंगल कनेक्शंस है, लेट से ज्यादा सिंगल कनेक्शंस। ये आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। अब लेट से आपका x1 है, x2 है, x3, x4 है। लेट से मैं फर्स्ट जो मेरा इस पे जो वेट जा रहे हैं उसमें बोलता हूँ, लेट से बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चलते हैं, मैट्रिक्स यूज नहीं करते हम, लेट से यूज करते हैं कि इसके लिए जो वेट आ रहे हैं फर्स्ट के लिए, फर्स्ट न्यूरॉन के लिए, ओके। इसको मैं बोल देता हूँ लेट से n1, इसको मैं बोलता हूँ n2, इसको बोलता हूँ मैं n3,
ये मेरा N4 है, ये मेरा N5 है। अब मैं नॉर्मल केचर पे नहीं जाते हैं, मेरा N6 है। तो इसके लिए लेट से जो N1 के लिए जो मेरे वेट आ रहे हैं, कितने वेट्स आएंगे N1 के लिए मेरे पास? हाउ मेनी वेट्स फॉर N1? 4 वेट्स और मैं लिखा न्यूरॉन। तो N1 के लिए मेरे पास कितने वेट्स आएंगे? 4, राइट। और ऐसी N2 के लिए भी, और N3 के लिए भी, और N4 के लिए 4 वेट्स आएंगे। N4 और N5 के लिए कितने वेट्स आएंगे? N4 N5 3 कितने कितने वेट्स? 3 वेट्स आएंगे, 3 3, क्योंकि 3 कनेक्शन इसके पास आ रहा है। N6 के लिए कितने वेट्स आएंगे? 2 वेट्स आएंगे। परफेक्ट, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब हम लेट से, मैं कहता हूँ कि N1 के लिए जो मेरे पास वेट्स आ रहे हैं, लेट से फॉर एग्जांपल मैं उसको बोल देता हूँ, आपके जो वेट्स आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली ब्लैक से आ रहे हैं, तो मैं इसको बोल देता हूँ दीज आर वेट्स आर कमिंग W1, W2, W3 एंड W4। तो N1 के लिए आपका जो मैं कहता हूँ कि नेट फंक्शन की कैलकुलेशन कैसे होगी, वो क्या होगा आपका, जिसको मैं Z बोलता हूँ एक्चुअली, G में बोल देता हूँ GN1। GN1 क्या होगा आपका? W उसका एनोटेशन 1 दे दीजिए। W1x1 प्लस W मल्टीप्लाई होगा एक्चुअली में, राइट, यस यस प्लस W3x3 प्लस W4x4। और क्या चीज मिसिंग है इसमें, और क्या होना चाहिए? बायस आएगा आपका। तो हम बायस कैसे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, मैं इसमें एक बायस कर देता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ लेट से ये मेरा बायस्ड है, जिसको मैं बोलता हूँ BN1 के लिए आ रहा है, या मैं इसको BN1 कर देता सर हूँ। ये बायस हर एक के लिए जा रहा है ना? हाँ, हर एक न्यूरॉन के लिए आएगा। तो इसके लिए वेट आपका क्या साइन हो जाएगा, लेट से इसका वेट हो गया आपका साइन, लेट से मैं इसको बोल देता हूँ B0N1 बोल देता हूँ। ओके, तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे, ये क्या जाएगा B, ये तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ये हमेशा 1 है, तो हमेशा आप वेट असाइन कर दो उसे। ओके, ये मेरा क्या जाएगा W0N1। ओके, तो ये आ गया आपका। ऐसे ही आपका आ जाएगा ZN2 भी आपका सेम तरीके से मिल जाएगा। लेट से ZN2 में आपके जो वेट हैं वो आपके वेट क्या है, लेट से दीज आर द वेट्स। N2 के लिए आपके वेट्स हैं W5, W6, W7 एंड W8, राइट। तो ये आपका क्या जाएगा, दैट इज W5 X1 से लेके W8 X4, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा वेट 0 N2 के लिए, ये आपका अलग से आएगा दिस वन, जिसको हम बोल देता हूँ W0 N2। ओके, ऐसे आपका ZN3 भी आ जाएगा। ओके, ऐसे ZN4 न्यूरॉन के लिए भी आ जाएगा। ओके, अब ये तो आ गया नेट फंक्शन। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जिसको मैं बोलता हूँ AN1 मेरा क्या आएगा, इसका आउटपुट जो मेरा जाएगा उसको मैं क्या लगाऊं, एक्टिवेशन फंक्शन। लेट से दिस इज सिग्मॉइड, किसके ऊपर लगेगा, ZN1 के ऊपर, ZN1 के ऊपर, एंड इट इज गोइंग टू गिव मी AN1। ऐसे इसका क्या होगा, ये जिसको बोलता हूँ N2 न्यूरॉन 2 का आउटपुट, सिग्मॉइड किसके ऊपर लगेगा, ZN2 के ऊपर। ऐसे इसका क्या लगेगा मेरा AN4 सिग्मॉइड ZN4 के ऊपर। तो ये मेरा आउटपुट क्या क्या आ गया, यहाँ से मेरा आउटपुट मैं बोल देता हूँ दिस आर माई आउटपुट, दिस इज माई AN1, दिस इज इसके यहाँ से जो आउटपुट आएगा मेरा, यहाँ से आउटपुट, ठीक है। वेट मेरे अलग कैलकुलेट होंगे, वेट की अलग बात करूँ, यहाँ से आउटपुट मेरा कितना आ गया, AN1, ये AN2 और ये मेरे AN3। ओके, AN1 और कहाँ गया मेरा AN2 और मेरा AN3 एंड AN4। ओके, अब सेकंड लेयर के लिए मेरे कैसे वेट कैलकुलेट होंगे। सेकंड लेयर के लेट से यहाँ पर मेरे कुछ भी वेट है, मैं इसको N4 के लिए वेट मान लेता हूँ। N4 के लिए जो मेरे वेट कैलकुलेट हो रहे हैं, लेट से दिस आर द वेट कैलकुलेटेड, मैं उसको मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल कितने 3 वेट कैलकुलेट होंगे, θ0, θ1 नहीं θ1, θ2 एंड θ3। तो अब इसके लिए कैलकुलेशन मेरी कैसे होगी, अगर मैं नेट फंक्शन निकालना चाहूँ N4 के लिए, इसको मैं बोल देता हूँ ZN4, ये मेरा क्या होगा, what it would be, θ1 A11 θ1 A1, right, yes AN1 plus θ2 AN2, right, plus θ3 AN3 plus एक biased, right, एक biased आएगा मेरा, तो इसको मैं biased ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, this is my biased coming, and let's से इसको मैं बोल देता हूँ W0N4, ये मेरा biased आ गया, that is W0N4। ओके, ऐसी मेरा ZN4 मेरा क्या होगा, ZN5
थीटा 4 ओके उसके लिए लेट से मेरे वेट से थीटा 4 से, तो थीटा 4 an1 an1 से आपका, और यहाँ पे लेट से मैं लास्ट में ऐड कर देता हूँ w0 n5। ओके अब लेट से इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा a4 क्या आएगा, व्हाट इज माय a, मैं इसको बोल देता हूँ n4 और 5 नहीं था, n1 n2 n3 n4 n5 n6 होना चाहिए था, n5 n6 n5 एंड n6। तो मेरा a n5 मेरा कितना आ जाएगा, सिग्मॉइड z n5। ओके और मेरा a n6 कितना आ जाएगा, मेरा सिग्मॉइड z n6। इसके लिए मेरा क्या होगी कैलकुलेशन, अब लेट्स से इसके लिए जो मेरे वेट कैलकुलेट होते हैं, लेट्स से दिस आर टू वेट्स हैं n4 and 5। लेट्स से मैं इनको बोल देता हूँ कौन कौन से वेट है मेरे, थीटा 0 थीटा 1 थीटा 2 मैंने यहाँ पे लिए थे। लेट्स से मैं इनको बोल देता हूँ कोई से वेट w, मैं इनको बड़ा डब्ल्यू बोल देता हूँ, w1 and w2, ठीक है w1। तो उस केस में यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा z जिसको मैं बोलता हूँ n7 मेरा क्या होगा, that would be w1 और an5 प्लस w2 और n6 प्लस एक वेट आएगा उसके ऊपर आपका, जिसको मैं बोल देता हूँ w0 n7। ओके इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका, सिग्मॉइड फंक्शन लग जाएगा, फाइनली आपका आउटपुट जाएगा दैट इज योर a7, और आपका क्या बन जाएगा एक्चुअली में y। ओके सो ये कैलकुलेशन पूरी समझ में आ गई, दिस इज गुड। अब एकदम एक चीज मुझे ये नहीं समझ है कि हर मतलब उस पे n1 n पे हम बेस बायस देते जा रहे हैं क्या, कि जैसे आपने पहले वाले बायस 1 दिया है, हाँ बी मान लीजिए वो कुछ भी मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो, तो फिर नेक्स्ट वाले बायस पे जो n4 है उस पे भी हम लोग बायस दे रहे हैं क्या? बायस आपका ईच एंड एवरी न्यूरॉन पे आएगा, ईच एंड एवरी न्यूरॉन पे आपका एक बायस आएगा, क्योंकि आपका वो नेट फंक्शन में ऐड होता है यहाँ पे। तो ईच एंड एवरी न्यूरॉन पे आपका एक बायस आएगा, और सबकी जैसे आपके यहाँ पे वेट कैलकुलेट होंगे ऐसे यहाँ पे बायस के वेट भी कैलकुलेट होंगे। तो आप इसको बी ना मान के आप इसको b0 b1 जो कह रहे हो वो आपका कैलकुलेट होता है एक्चुअली में। ओके तो सारी चीज आपकी कैलकुलेट होंगी, जैसे कि वहाँ पे अगर आपको याद होगा लीनियर में लॉजिस्टिक में आपका थीटा 0 कैलकुलेट होता था, राइट? तो थीटा 0 आपका बायस था, यहाँ पे आपके सारे थीटा 0 जो आपकी बायस आ रही है वो सारे आपके एक्चुअली में ट्रेनिंग टाइम पे कैलकुलेट होंगे आपके, क्योंकि आपका ईच एंड एवरी न्यूरॉन लॉजिस्टिक की तरह काम कर रहा है, उसके पास जो फीचर आ रहा है उससे आउटपुट दे रहा है, तो उसकी एक बायस होगी, उसकी अपनी एक बायस लेके चलेगा, क्योंकि उसे मतलब नहीं है वो अपना अकेले काम कर रहा है कि न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है, अपने आप में उससे मतलब नहीं है कि पूरा न्यूरल नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, उसके पास इनपुट आ रहा है वो आउटपुट दे रहा है, उसके लिए बात खत्म हो गई। ओके तो एक अपनी बायस इनपुट आएंगे, एक अपनी बायस लेगा, उसका आउटपुट निकालेगा। अंडरस्टूड? ओके अब जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में बात करते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन्हीं वेट्स को हम लोग किस पर डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो आपकी जो नेट कैलकुलेशन होगी यहाँ पे जिसमें ये लिख रहा हूँ एक्चुअली में कैसे हो जाएगी आपकी, ये आपकी इसको अगर मैं वो बोलूँ तो ये क्या हो जाएगी, WT(x) हो जाएगी, जैसे हम लिनियर में देखी थी मैट्रिक्स फॉर्म में, राइट? और इसके ऊपर आपका क्या लग जाएगा, सिग्मा लग जाएगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपके वेट सारे जो हो जाते हैं आपके उसमें चले जाते हैं। एक्स किस चीज का मैट्रिक्स है, आपका इनपुट का मैट्रिक्स है बड़ा, ओके, और ये आपका वेट का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स फॉर्म में आपका मैट्रिक्स फॉर्म में कैलकुलेशन, अभी हम जो कैलकुलेशन की अपनी अलग अलग कर रहे थे, मैट्रिक्स फॉर्म में कैलकुलेशन होगी तो आपकी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, हम उसका मैट्रिक्स ले लेंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हम देखे तो मैट्रिक्स फॉर्म की कैलकुलेशन थी, ये हमारी कैलकुलेशन थी जब हमारा सिर्फ एक इनपुट आ रहा था, व्हेन आई एम टेकिंग ओनली सिंगल इनपुट। लेकिन जब मैं मॉडल को ट्रेन करता हूँ आई नीड ए लॉट ऑफ इनपुट, तो अगर मेरे पास ज्यादा इनपुट आएंगे तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सिर्फ क्या चेंज होगा, मेरा सिर्फ W मेरा सेम रहेगा, राइट? मेरा W कहाँ गया, W दिस मेरा आपका Z मेरा सेम रहेगा, जो पहले मेरा Z बन रहा था। W मेरा सेम रहेगा क्योंकि वेट सबके लिए, हर रिकॉर्ड के लिए वेट मेरा वेट का सेम मैट्रिक्स काम करेगा। B मेरा सेम रहेगा, सिर्फ मेरा क्या चेंज हो जाएगा, X चेंज हो जाएगा। पहले सिर्फ एक डेटा आ रहा था X1, ये सिर्फ ये डेटा जिसको हम बोला था X1 और X2 और X3। यहाँ पर आपके अगर मेरे पास लेट्स 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो 3 रोज हो जाएगी, वन फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड एंड थर्ड रिकॉर्ड, बस और कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। अब आपकी पूरी कैलकुलेशन में आपका X मैट्रिक्स चेंज हो गया है यहाँ पर, ये आपको जो X मैट्रिक्स था दिस वन, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ओके, और आपकी सारी कैलकुलेशन आपके मोर लेस सेम रहेंगे। ओके सो ये आपका हो गया जब हम मल्टीपल ट्रेनिंग एग्जांपल्स लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी तक जो हमने अभी तक किया है? ओके
अब मॉडल ट्रेन कैसे होता है आपका, जब मैं बात करता हूँ कि आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपका ट्रेन कैसे होगा, बिल्कुल जैसा आपका, आप पूरी कंप्लीट फंक्शनिंग भूल जाओ, मैं सिर्फ लॉजिस्टिक की बात करता हूँ। लॉजिस्टिक हम लोग क्या निकालते थे, आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, और एक्चुअल क्या होना चाहिए, उनके बीच का लॉग लॉस क्या है, दिस वन, और इस लॉग लॉस के हिसाब से, इस लॉग लॉस को मिनिमाइज करने के हिसाब से आपके वेट क्या होते थे, ट्रेन होते थे, राइट। एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे ईच एंड एवरी न्यूरॉन जो आपका लॉजिस्टिक की तरह बिहेव कर रहा है, वो क्या करता है, अपने वेट को ट्रेन करता है अपने इनपुट और आउटपुट के हिसाब से। ओके, अपने इनपुट और आउटपुट के हिसाब से अपने वेट ट्रेन करता है। अब लेट्स से मेरे पास ये 3 न्यूरॉन्स हैं, अब इस न्यूरॉन के लिए ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ओके, अब ये क्या करेगा, अब इनपुट क्या, आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है और इनपुट क्या है, उस हिसाब से वेट ट्रेन होते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको लास्ट आउटपुट पता है, बीच के इनपुट आपको नहीं पता है। ओके, किस बेसिस पर ट्रेन होंगे, ये आपका लास्ट न्यूरॉन, इसमें आपका जो मॉडल ट्रेन होता है आपको होता है बैक प्रोपगेशन के थ्रू। इसमें आपके सारे वेट ट्रेन होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन आपके बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे जो आउटपुट है वो आपका डिसाइड करता है बेसिकली किस बेसिस पे, इन 3 वेट्स पे। लेकिन ये 3 वेट किस पे डिपेंड करते हैं, ये वेट्स क्या होंगे। सो आपके सारे के सारे वेट आपके बेसिकली आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे हैं। ईच एंड एवरी न्यूरॉन इज वर्किंग एज ए पार्ट और यू कैन से एज ए टूल ऑफ दिस कंप्लीट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो उसके वेट आपके आइसोलेशन में ट्रेन नहीं होते हैं, उसके वेट आपके ट्रेन होते हैं एज रिलेटेड टू ऑल अदर वेट्स, क्योंकि ईच एंड एवरी वेट इज अफेक्टिंग ईच एंड एवरी अदर आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन और इनपुट। तो उसको बोलते हैं बैक प्रोपगेशन के थ्रू, जिसको हम अभी एग्जांपल देखेंगे कि बैक प्रोपगेशन के थ्रू आपका मॉडल कैसे एक्चुअली में ट्रेन होता है। लेकिन आपका लॉग फंक्शन आपका लास्ट में सेम रहेगा। लेट्स से आपका ये मुझे इमेज क्लासिफाई करनी है, इमेज के लेट्स से 3 पैरामीटर है। ओके, तो अल्टीमेटली में लॉस फंक्शन क्या होगा, वही होगा लॉग लॉस फंक्शन, दिस वन मेरा लॉग फंक्शन होगा। लास्ट लेयर से मेरा लास्ट आउटपुट मेरा निकलेगा, तो लास्ट में मेरा लॉग लॉस फंक्शन ये निकलेगा और इसके बेसिस में पूरे सारे वेट ट्रेन करूंगा यूजिंग द बैक प्रोपगेशन। लॉस मेरा सिंपली यही है कि एक इमेज थी, उसको डॉग करना था, एक कैट करना था, उसने डॉग को अगर कैट कर दिया तो ये मेरा लॉग लॉस हो गया। इसके बेसिस पे यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट मेरा कंप्लीट मॉडल मेरा ट्रेन होगा एग्जैक्टली सेम तरीके से। अभी हम देखेंगे लॉग जो लॉग ए ले रहा है, हाँ हाँ सर ये जस्ट मतलब वाई से पहले वाला है? नहीं, ये तो आपका log 2 AI है, मतलब जो आपका आउटपुट आ रहा है log सर A2 मतलब सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला, राइट, जो उसको नेट फंक्शन बोलते हैं, नेट फंक्शन। ओके, क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ पे नेट फंक्शन मान के चलते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये आपका नेट फंक्शन आ गया यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको याद भी होगा तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या होता है आपकी, यहाँ पे हम क्या लेते थे उस टाइम, यहाँ पे हमारा होता था log y होता था y। ओके, और ये आपका क्या होता है log 1 माइनस h थीटा x। आपका A2 आई है कि 2 से आपका आउटपुट जा रहा है, तो बेसिकली आपका नेट फंक्शन ये आपका सिग्मा से जो आउटपुट जा रहा है वो है ये, क्योंकि आपका A है ना, A वो आपका जो नेट फंक्शन होता है आपका Z होता है, ये A है। ये सब फाइनल आउटपुट ही है ना, लाइक सिग्मा जो जा रहा है आउटपुट, फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट आपका है, क्योंकि फाइनल आउटपुट आपका डिसाइड करेगा ना, जो फाइनल आउटपुट। यहाँ पे 2 लेयर है तो मैं 2 की बात कर रहा हूँ, आपका फाइनल आउटपुट है। डीप लर्निंग का सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि अगर मुझे इमेज को क्लासिफाई करना है, जैसे कि हमने एग्जांपल किया था कि मुझे 28 पिक्सल की मेरे पास एक इमेज है, MNIST की इमेजेस हैं जो कि मुझे 0 से लेके 1 तक है, मुझे ये इमेज का ये जो मेरी डिजिट क्लासिफाई करना है। तो 28 के लिए 784 आपके क्या बन जाएंगे, ईच एंड एवरी पिक्सेल्स बिकम अ फीचर। तो आपके इनपुट लेयर पे कितना इनपुट का साइज कितना होगा, आपका इनपुट का साइज मेरा कितना होगा 784, यानी कि मेरे इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे 784 न्यूरॉन्स। उसके बाद मेरी मर्जी में कितने भी लगा सकता हूँ। उसके बाद मैं अब आपके बाद में कितनी लेयर्स मुझे ऐड करनी है और ईच एंड एवरी लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे, दैट इज द हाइपर पैरामीटर्स, यानी नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होंगी और ईच एंड एवरी न्यूरॉन्स में आपके न्यूरॉन्स कितने होंगे, ईच एंड एवरी, ये भी दोनों मेरे हाइपर पैरामीटर्स हैं। अभी मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, अगर आप ज्यादा लेयर्स लगाओगे तो आपका मॉडल ओवरफिट हो जाएगा, ज्यादा न्यूरॉन्स लगाओगे ओवरफिट हो जाएगा, कम लगाओगे तो अंडरफिट हो जाएगा। तो दिस इज अ हाइपर पैरामीटर, यू हैव टू ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कि आपका मॉडल ओवरफिट भी ना हो और आपका मॉडल अंडरफिट भी ना हो।
ओके आप ज्यादा न्यूरॉन्स लगाओगे, ज्यादा लेयर लगाओगे तो आपके इनपुट इमेज के हिसाब से, इनपुट डेटा के हिसाब से वो क्या करेगा, आपके फाइनल आउटपुट के सारे वेटेज से ट्रेन करेगा कि इनपुट डेटा पे आपका मॉडल बेहतरीन ट्रेन हो, 100% क्लासिफाई कर दे। लेकिन जैसे टेस्टिंग में जाएगा, वेट आपके जनरलाइज ट्रेन नहीं हुए तो उस पर क्या करेगा, उसका स्कोर कम हो जाएगा। सो वी हैव, जब हम नंबर ऑफ लेयर ऐड करेंगे, न्यूरॉन्स ऐड करेंगे, तो वी हैव टू कीप इन द माइंड कि आपका मॉडल ओवरफिट ना करे। बट दीज आर द हाइपर पैरामीटर्स दैट यू कैन कंट्रोल। ओके, बहुत सारे और भी तरीके हैं, बट एज ऑफ नाउ दीज आर द हाइपर पैरामीटर्स। सो लेट्स से मैंने एक या दो ले ली, चलो मैंने, ठीक है, लेयर्स लगा दी, एक और लगा दी, लेट से 3 मैंने हिडन ले लगा ली, 1 2 और 3। लेट से फर्स्ट मैंने 100 ले लिए, सेकंड में लेट से मैंने 60 ले लिया, फिर मैंने 50 ले लिया। तो जनरल जो कन्वेंशन होता है वो ये होता है कि आपका जो आर्किटेक्चर का साइज होता है, लेयर्स का साइज, वो आपका कम होता चला जाता है। दिस इज जनरल कन्वेंशन। आप कभी भी उसको बढ़ाओगे नहीं, कभी ऐसे नहीं होता कि आपका लेयर्स का साइज बढ़ता चला जाए। आपका इनपुट का जो साइज होगा, मोर लेस आपका जो होगा, इनपुट का साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद फिर आपका आर्किटेक्चर छोटा होता चला जाता है, फाइनल में आप उसको क्या करते हो, आउटपुट दे देते हो। दिस इज द जनरल आर्किटेक्चर। आपको हमेशा यही आर्किटेक्चर मिलेगा कि आप उसको श्रिंक करते चले जाओगे लेयर का साइज। आप लेयर, जैसे जैसे आपकी लेयर बढ़ती चली जाएंगी, आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स लेयर में आपके कम होते चले जाएंगे। ओके, और यहाँ पर आपका ईच लास्ट लेयर में आपके कितने, लास्ट लेयर से आप क्या दोगे, आप आउटपुट दोगे, जो आपके आउटपुट लेयर जिसको हम बोलते हैं। अगर आपकी बेसिकली, अगर आपकी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, नॉर्मल बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो एक सिंगल न्यूरॉन से मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि सिंगल न्यूरॉन क्या करेगा, अगर उसका आउटपुट 0.5 से ग्रेटर और इक्वल टू है, ये मेरी पॉजिटिव क्लास होगी, बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। अगर ये 0.5 से कम है तो नेगेटिव क्लास होगी, अगर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। ऐसे अगर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, तो रिग्रेशन की प्रॉब्लम में आपका सब कुछ सेम रहता है, आपका बीच में आपके सारे, आपका ईच एंड एवरी न्यूरॉन पे आपका एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, लेकिन लास्ट लेयर पे आपका सिर्फ एक न्यूरॉन होगा, लेकिन उस पर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाओगे। वो एक्टिवेशन फंक्शन लगाओगे तो उसको क्या कर देगा, लिमिट कर देगा 0 से 1 के बीच में कुछ भी। तो रिग्रेशन में क्या होता है कि आपके लास्ट में सिर्फ एक न्यूरॉन होगा, लेकिन लास्ट वाले न्यूरॉन पे जो आपका आउटपुट न्यूरॉन होगा, उस पर आपका एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। जो भी आपका नेट फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो आपका आउटपुट बन जाता है रिग्रेशन वाले केस में। लेकिन मुझे लास्ट लेवल सिर्फ मुझे एक न्यूरॉन चाहिए, तो रिग्रेशन में एक न्यूरॉन से काम चल जाएगा मेरा, बाइनरी क्लासिफिकेशन में आउटपुट पे एक लेयर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर मेरी बाइनरी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, जैसे कि इस केस में मेरी आउटपुट क्लास मेरी कितनी है, 0 1 2 में 9 तक लेकर मेरे पास 10 क्लासिफिकेशन है, 10 डिफरेंट क्लासेस है मेरे पास। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, मेरे आउटपुट लेयर में 10 मेरे न्यूरॉन्स होंगे, 10 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इक्वल टू 10। और फर्स्ट न्यूरॉन मेरा क्या देगा, लेट्स से फर्स्ट न्यूरॉन मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिजिट 0 को। दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिजिट 0, second is representing digit 1, third is representing digit 2, this is representing 3, and let's say the last one is representing digit 9. okay, तो लेट से मैंने उसको इनपुट 8 दिया है, ओके, तो उस हिसाब से 8 ना मान के लेट से एग्जांपल के हिसाब से 2 मान लेता हूँ। लेट्स मुझे इनपुट 2 दिया है, उसको 2 क्लासिफाई करना चाहिए, तो ईच एंड एवरी न्यूरॉन से आपका आउटपुट निकलेगा प्रोबेबिलिटी। ओके, तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, तो जो आपका अगर ये 2 है तो 2 में आपका जो आउटपुट है जो मैक्सिमम आना चाहिए। लेट्स इट इज कमिंग इज 0.6, इसके लिए आपका लेट्स से आ रहा है 0.4, इसके लिए आपका 0.2, इसके लिए 0.1, इसके लिए 0.011। तो जिसके लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी आउट, जो भी आपको न्यूरॉन आपको मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है वो उसको आप प्रेडिक्ट कर दोगे। तो अगर ये 2 से आपकी 0.6 निकल रही है तो आपको 2 को प्रेडिक्ट कर देगा। लेट्स से गलत क्लासिफाई करा तो हो सकता है इसके लिए लेट्स से 0.3 आ रही हो, और लेट्स से ये 2 जो है आपका लेट्स से उसको 6 की तरह लग रहा है, तो 6 तो उसको पॉइंट वो हो सकता है 0.7 निकाल दे, तो इस केस में वो आपको गलत आउटपुट दे रहा है, इट इज गिविंग द रॉन्ग आउटपुट, क्योंकि आपका जो डिजिट है उस डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका आउटपुट का जो न्यूरॉन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जिसके ये सबको कंपेयर करेगा और जिसके लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है वो आपके लिए प्रेडिक्ट कर देगा। ये एग्जांपल समझ में आया? मल्टी क्लासिफिकेशन में जब जितनी आपकी क्लासेस होंगी उतनी आप न्यूरॉन्स लोगे, और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका हाईएस्ट आउटपुट आ रहा है वो क्लास आप प्रेडिक्ट कर दोगे। इसमें क्या चीज है जो समझ में नहीं आई है? अगर आ गई है तो बताओ। सबको आ गई? तो मुझे एक चीज बताओ, अब मैं एक बात आपको ये कह रहा हूँ कि मैं ईच एंड एवरी न्यूरॉन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग वन क्लास,
तो मुझे कैसे पता कि ये 0 क्लास को बिलोंग करता है, ये 1 क्लास को बिलोंग करता है, 2 क्लास को बिलोंग करता है, 3 क्लास को बिलोंग करता है? ये मैंने कहाँ डिसाइड किया? हाउ आई एम डिसाइडिंग? ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा न्यूरॉन कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? एक्चुअली हाउ आई एम डिसाइडिंग इट? कैसे डिसाइड होगा? सिंगल न्यूरॉन में तो बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा आ रही है, पॉजिटिव कम आ रही है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास 10 न्यूरॉन्स है और आपको आप ये कैसे फिक्स करोगे कि कौन सा न्यूरॉन कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? सर हम तो सेम मैच्योरिटी वाला देंगे। सेम मैच्योरिटी वाला मतलब? मेजॉरिटी वोट नहीं, मेजॉरिटी वोट तो आपने ले ली, आपने मेजॉरिटी वेट करा ली। लेट से मेजॉरिटी वेट में आपका क्या हुआ? मेजॉरिटी वेट में क्या हुआ कि लेट से आपका ये वाला न्यूरॉन था, ये न्यूरॉन आपको हाईएस्ट आउटपुट 0.7 दे रहा है, लेकिन आपको कैसे पता कि ये आपकी कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है? 1 0 क्लास को बिलोंग कर रहा है, 1 को या 2 को या 3 को 4 को? पता कैसे लगे कौन सा न्यूरॉन कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है? वो कैसे पता चलेगा मुझे? क्योंकि अगर हम मशीन लर्निंग, चलो हम कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से हम कंपेयर करते हैं, लॉजिस्टिक में कैसे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता था? 1 वर्सेस मैनी होता था, 1 वर्सेस मैनी। हाँ, बहुत आसान था एक्चुअली, बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं था, आप लेवल चेंज कर देते थे। सेम तरीके से आपके एसवीएम में होता है 1 वर्सेस मैनी, ऐसे सेम जो भी आपका, और ऐसे ही आपका और किसमें होता है आपका नेव बायस में, तो खैर वो सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के देता था आपका, तो आपके लिए बहुत आसान था क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता था आपके प्रायर। ओके, प्रायर कह रहा हूँ, आपकी अलग अलग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालता था। आपका रैंडम फॉरेस्ट में आपके अलग अलग बकेट बन जाते थे, ठीक है ना, आपके अलग अलग बकेट बन जाते थे, और जो उसका प्रपोर्शन होता था, और उस प्रपोर्शन में जो आपकी मेजॉरिटी क्लास होती थी उसको क्या करता था, प्रेडिक्ट कर देता था रैंडम फॉरेस्ट में, डिसेंट्री में। उसके लिए मेरे बहुत आसान था निकालना। यहाँ पर मैं कैसे करूँगा? ये बिल्कुल एल्टुगेदर डिफरेंट चीज है। मेरे पास 10, मैंने 10 आउटपुट रख दिए हैं, 10 न्यूरॉन्स हैं। अब मुझे कैसे मैं असाइन करूंगा कि मेरा फर्स्ट न्यूरॉन या थर्ड नंबर का न्यूरॉन जो है बेसिकली कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है? कैसे होता होगा? अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि यू नो इट, बट डू यू हैव एन आइडिया कैसे एक्चुअली होता होगा, ये कैसे असाइन करते होंगे हम? सर अगर मैनी टू वन करके देखें तो मैन्यू टू वन इज परफेक्टली फाइन, मैन्यू टू वन तो आपका हो ही रहा है, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा? वो तो आउटपुट निकाल लेगा, उसने आपने 2 दिया, उसने उसको आपको आउटपुट दे दिया। अब उसने आपको आउटपुट दे दिया, कोई सा एक न्यूरॉन आपको लेट से, बाकी सब कम दे रहे हैं, कोई सा एक न्यूरॉन आपको 0.8 दे रहा है, लेकिन वो न्यूरॉन जो 0.8 दे रहा है एक्चुअली कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? 1 वो 0 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट, कौन सी डिजिट है वो? सर वेट से पता लग सकता है, रेट तो आपके लर्न हो रहे हैं, ठीक है, वेट तो आपके ट्रेनिंग टाइम पे लर्न हो गए। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग टाइम पे हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा किसको बिलोंग करेगा। ट्रेनिंग टाइम पे जब मॉडल ट्रेन करते हैं, तो मॉडल ट्रेन करते हैं हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उसको बता देते हैं कि बेसिक जब मॉडल ट्रेन होगा स्टार्टिंग में, जब मैं मॉडल का आर्किटेक्चर बनाऊंगा, तो इस स्टार्टिंग में जब मैं डिजिट बनाऊंगा तो उसको स्टार्टिंग बना दूंगा कि ये एक्चुअली 0 क्लास को बिलोंग करता है, ये 1 क्लास को बिलोंग करता है, ये 2 को बिलोंग करता है। क्योंकि मैं एक्चुअली क्या करूंगा, एक्चुअली आपका होने वाला क्या है, जब मैं लेट से मेरे पास एक डिजिट आई, मेरा रिकॉर्ड कैसे होगा? लेट से 0 डिजिट है तो उसका आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। लेट से 1 डिजिट है तो उसका लेवल क्या होगा? 1 होगा। अगर 2 डिजिट है इसका लेवल क्या होगा? 2 होगा। 3 डिजिट का लेवल 3 होगा। ऐसे होगा मेरे सारे रिकॉर्ड्स, मेरे इमेज रिकॉर्ड मेरे इस तरह से होंगे। तो जब मैं मॉडल स्टार्टिंग बनाऊंगा तो मैं लास्ट में क्या करूंगा, 10 न्यूरॉन्स रखूंगा आउटपुट पे। ईच एंड एवरी क्लास के हिसाब से मेरे 10 न्यूरॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो मेरा जो लेवल होगा आउटपुट का, जो मेरा डाटा लेवल होगा, दैट इज माय लेवल डाटा, LABEL। ओके, ये मेरा लेवल है। तो ये मेरी एक्चुअल में क्या लेवलिंग है? ये मेरी कौन सी लेवलिंग है? दैट इज कॉल्ड लेवल एनकोडिंग। ये मेरी लेवल एनकोडिंग होगी। मैं क्या करूंगा, इसको कौन से एनकोडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा? आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द 1 हॉट एनकोडिंग। तो 1 हॉट एनकोडिंग क्या कर देगी, इसके 10 कॉलम्स बना देगी। इट इज गोइंग टू क्रिएट 10 कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम किसको बिलोंग कर रहा होगा?
फर्स्ट कॉलम 0 को बिलोंग कर रहा होगा, राइट से सेकंड कॉलम आपका 1 को बिलोंग कर रहा होगा, राइट, आपका सेकंड को, ये थर्ड को, ये फोर्थ को, फिफ्थ। ये क्या करेगा जब आपका मॉडल क्रिएट होता है नियर नेटवर्क, तो ईच एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करता है, एक यहाँ पे अटैच कर देता है। इस फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 अटैच हो जाता है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये अटैच हो जाता है, सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग ये अटैच हो जाता है। अब उसको कि आपको पता है बेसिकली जब ये मॉडल ट्रेन करने के लिए जाएगा तो उसको पता है कि मेरा जो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा और सब में 0 है। ओके, तो उसको पता है कि इस पहले न्यूरॉन से आउटपुट आना चाहिए और बाकी सबसे आउटपुट 0 आना चाहिए। ओके, तो जो भी आपकी ये क्लास होगी उसके हिसाब से जितने यहाँ पर आपका, जितने आपने एनकोडिंग की है उतने ही आपके यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाते हैं, उतने आपके न्यूरॉन मिल जाते हैं और उसके हिसाब का आपका डिसाइड होता है। तो वो क्या मान के जब मॉडल को ट्रेन करेगा, लेट्स आपने उसको इमेज दी 1 0 वाली, तो 0 वाले में उसको पता है कि इस फर्स्ट लेवल के जो कॉरस्पॉन्डिंग है, फर्स्ट कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये वाला न्यूरॉन मैंने बनाया है, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 आना चाहिए। तो मॉडल को इस तरह से ट्रेन करेगा, अगर मैं ये वाली इमेज दूंगा तो आउटपुट इससे 1 आना चाहिए, बाकी सबसे 0 आना चाहिए। इस तरह क्या करेगा, पूरे मॉडल को ट्रेन करेगा। जैसे सेकंड इमेज आएगी, लेट्स से आपकी 9 वाली आ रही है, तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये वाला न्यूरॉन है, तो क्या करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 आना चाहिए, बाकी सबके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आना चाहिए। तो इस तरह से पूरे मॉडल को ट्रेन करेगा। ओके, तो ट्रेनिंग टाइम आपका फिक्स हो जाता है। जब मैं मॉडल आर्किटेक्ट करता हूँ मैं स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे वो बड़ा फिक्स हो जाता है कि कौन सा जो आपकी न्यूरॉन है वो कौन सी क्लास से कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके, अंडरस्टूड द पॉइंट? ओके, बताओ। ठीक है, सो ये आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। इमेज आई आपकी, या आपके इनपुट आ गए, या आपने सिर्फ एक लास्ट में एक आउटपुट पे सिर्फ आपका एक न्यूरॉन है और यहाँ से आप क्या दे देगा, आउटपुट दे दोगे। आपका 0.73 आ गया, ये 0.5 से ज्यादा है, इट इज अ कैट। अगर नहीं होता तो आपका ये बाइनरी क्लास, तो आपका नॉट कैट आ जाता, नॉट कैट और व्हाटएवर ये डॉग है। ओके, so this is binary classification, this is multi-class classification, this is regression. आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन में आपका इनपुट, आपके नंबर ऑफ इनपुट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आज में आपका सिर्फ एक न्यूरॉन होगा आउटपुट के लिए, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। ओके, और आपका आउटपुट पे आपका जो सिग्मॉइड फंक्शन लगेगा, सॉरी एक्टिवेशन फंक्शन आपका सिग्मॉइड होगा। तो आउटपुट जो न्यूरॉन होगा सिंगल आउटपुट लेयर पे सिर्फ एक न्यूरॉन होगा और उस पर जो एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा वो आपका एक्टिवेशन लगेगा, सॉरी सिग्मॉइड लगेगा। ओके, एरर फंक्शन, क्योंकि आप सिग्मॉइड यूज करो तो आपका एरर फंक्शन क्या होगा, क्रॉस एंट्रोपी। ओके, बीच में आपको जो डेंस लेयर है आप कितनी भी रख सकते हो, कितने भी न्यूरॉन रख सकते हो, और यहाँ पे आप, ये आपके ऊपर है कि आप एक्टिवेशन फंक्शन क्या लेना चाहते हो। तो जनरली मिडिल लेयर पे आपका सिग्मॉइड फंक्शन यूज नहीं होता है, क्योंकि इट इज गोइंग टू टेक ए लॉट ऑफ टाइम और इसमें लर्निंग बहुत कम होती है सिग्मॉइड में, आगे देखेंगे। तो मिडिल पे आप 10H यूज कर सकते हो, वो भी जनरली यूज नहीं होता है। जनरली जो इंडस्ट्री में यूज होता है आपका रेलू यूज होता है, जैसे रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो अगर आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो आपका आर्किटेक्चर आपका ये बनेगा, लास्ट लेयर पे सिर्फ एक न्यूरॉन होगा, एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड होगा और लॉग्स फंक्शन आपका क्रॉस एंट्रोपी होगा, सिंपल। ओके, अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आउटपुट लेयर में जितनी भी आपकी क्लासेस हैं उतने ही आपके न्यूरॉन होंगे। ओके, और यहाँ पे भी आपका आउटपुट क्या जाएगा, यहाँ पे जनरली हम आउटपुट पे यूज करते हैं आपका सॉफ्टमैक्स। ओके, सॉफ्टमैक्स कुछ काम नहीं करता, सॉफ्टमैक्स सिर्फ एक छोटा सा काम करता है। आपका जो आउटपुट यहाँ पे हमने देखा था आउटपुट आ रहा होता है, लेट्स यहाँ पे आउटपुट हो सकता है यहाँ पे आपको 0.4 आ रहा होगा, एक पॉइंट का 0.3 आ रहा है, का 0.25 आ रहा है, तो इन सबको अगर आप सम करोगे तो 1 से ज्यादा पहुंच जाता है। ओके, तो सॉफ्टमैक्स क्या करता है, इस प्रोबेबिलिटी, आपकी सारी प्रोबेबिलिटी को नॉर्मलाइज कर देता है। अगर आप सबकी प्रोबेबिलिटी को प्लस करोगे तो उसका सम 1 आ जाएगा। ओके, तो अदरवाइज आप सब पे अलग अलग सिग्मॉइड भी यूज कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टमैक्स यूज होता है क्योंकि सॉफ्टमैक्स आपके आउटपुट प्रोबेबिलिटी को नॉर्मलाइज कर देता है। तो आपको जो भी आपके आउटपुट की प्रोबेबिलिटी आ रही होगी इन सबका अगर सम करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो दैट इज सॉफ्टमैक्स फंक्शन। अगर आपकी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो लास्ट लेयर पे आपको उतने न्यूरॉन्स होंगे जितनी क्लासेस होंगी, तो आपको जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा वो आपका सॉफ्टमैक्स फंक्शन ही होगा, और ये उसका फॉर्मूला होता है जो हम आगे भी देखेंगे। ओके, और जैसे यहाँ पे आपका क्रॉस एंट्रोपी होता है, सॉफ्टमैक्स मोर लेस आपका सेम कॉस्ट फंक्शन काम करता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, वो भी आपका क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन ही होता है। रिग्रेशन केस में आपका लास्ट लेयर पे आपका सिर्फ एक न्यूरॉन होगा, लेकिन आपका एक्टिवेशन फंक्शन कुछ नहीं होगा, नो एक्टिवेशन फंक्शन।
ओके, तो जो अभी आपका नेट फंक्शन होगा लास्ट न्यूरॉन से जो भी नेट फंक्शन निकलेगा वो आपका आउटपुट बन जाएगा। हाँ, बीच वाली लेयर्स पे आपके एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे जो कि आपका रेलू होगा या कुछ और जो भी आप यूज करना चाहते हो, लेकिन लास्ट लेयर पे जो लास्ट न्यूरॉन होगा उसके ऊपर आपका कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होगा। और आपकी एरर क्या काम करेगी, एरर फंक्शन आपका क्या होगा, मीन स्क्वायर्ड एरर। अगर आप MSE यूज करो तो MSE, MAE यूज करो तो MAE, जो भी आप यूज करना चाहते हो। ओके, सो ये आपका जनरल आर्किटेक्चर है डीप लर्निंग का। इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, सो वी आर गुड। तो सिंगल न्यूरॉन का आपका ये और फंक्शन है जो आप और फंक्शन देखते हो, और का इम्प्लीमेंटेशन है। ये आपकी और गेट की टेबल है आपकी। अगर इनपुट 0 0 तो आउटपुट 0 0 1 0। एक सिंपल एग्जांपल है कि एक्चुअली आपके वेट एक्चुअली में कैसे ट्रेन होते हैं, हाउ एक्चुअली वी और वेट्स आर गेटिंग ट्रेन। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास इनपुट आ रहे हैं कौन कौन से, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ठीक है। अब मैं सिर्फ कोई हिडन लेयर नहीं, कोई कुछ, सिर्फ एक न्यूरॉन यूज कर रहा हूँ, एक परसेप्ट्रॉन है, ये आएगा और आउटपुट दे देगा, क्योंकि बाकी लेयर की जरूरत ही नहीं है। ये एक बायस आ गया, दिस इज बायस। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मेरा ट्रेनिंग डाटा कौन कौन से, मेरे पास ट्रेनिंग डाटा मेरे पास ये है, दिस इज माय ट्रेनिंग डाटा। ये 4 रिकॉर्ड मेरे पास ट्रेनिंग डाटा है, इनके ऊपर मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा इस तरीके से कि अगर 0 0 है तो आउटपुट 0 आना चाहिए, 0 1 है तो आउटपुट 1 आना चाहिए, ये मेरे पास ये आउटपुट होना चाहिए। इससे ज्यादा रिकॉर्ड में रख ही नहीं सकता हूँ कि यही 4 रिकॉर्ड पॉसिबल है और गेट में। ओके, और इसके हिसाब से मुझे मॉडल को ट्रेन करना है। ट्रेन करने का मतलब क्या है, ये सारे वेट मुझे ट्रेन करने हैं। ये वेट मेरे इस तरह से ट्रेन होने चाहिए कि आउटपुट जो है मेरा क्या आना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, सिग्मॉइड फंक्शन है, लॉग लॉस फंक्शन में ऐसे काम करेगा। अगर मैं एक्चुअली मॉडल को ट्रेन करने जाऊँ उस तरीके से तो लॉजिकली वो ऐसे ट्रेन होगा, मैथमेटिकली लॉग लॉस फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है 0 और 1, तो ये आउटपुट क्लास है 0 और 1। ओके, अगर मैं लॉजिकली इसको करके देखूं तो अगर आप देखो, मैं यहाँ पे मैंने लेट से यहाँ पे मैनुअली करके देखता हूँ। लेट से यहाँ पे मैंने -10 -20 और -20 कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, लेट से मैं इसको -10 है लेके लेट से मैं इसको 5 ले लेता हूँ, इसको लेट से मैं 4 ले लेता हूँ, इसको मैं 3 ले लेता हूँ बाय ऐसे रैंडम। अब मैं इसको रख के चलता हूँ। x1 मेरा कितना आया, लेट से इस वाले केस के लिए करते हैं हम 1 1 के लिए, 1 और 1 के लिए। x1 में कितना मेरा 1, तो 1 × 5 प्लस x2 मेरा कितना है 1, ये वेट कितना मेरा 4, यानी कि 1 × 4, और ये मेरा कितना है 22, तो 22 है यानी कि 3 प्लस 3, तो ये कितना हो गया मेरा, दिस इज बिकम 5 + 4 9, तो फिर 12 बन गया। अब 12 के ऊपर सिग्मॉइड फंक्शन लगाऊंगा, 12 मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा मेरा, व्हाट शुड कम, क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, दिस इज योर सिग्मॉइड फंक्शन 0 और 1 के बीच में, +4 -4 के बीच में काम करता है, राइट। ये अगर आपके +4 से ज्यादा है तो आपके ऑलमोस्ट 1 हो जाता है, तो आपका क्या आउटपुट दे देगा, 1 दे देगा। तो इस पे मेरा काम कर रहा है, लेकिन क्या मेरा इस पे भी काम करेगा, ये मैं इस पे देखता हूँ 0 0 वाले 0 0 केस में ये 0 राइट, ये मेरा 3 बन गया, लेकिन आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, अभी 1 आ रहा है, तो इस वाले केस पे फेल हो गया, यानी कि मेरा वेट, ये मेरे वेट जनरलाइज वेट नहीं है, काम नहीं कर रहा है। ओके, तो आई हैव टू, मैं अब मुझे क्या काम करना है, मुझे लेट से मैंने वेट ट्रेन करी है -10 20 और लेट से -20। अब इन सारे वेट को अगर आप देखोगे तो आप ये सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एग्जैक्टली मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे एग्जैक्टली आपका सेम तरीके से काम करता है। मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने ये रैंडम वेट लिए थे 5 4 और 3, और मैंने देखा इसके लिए काम नहीं कर रहा था, एक एरर आ गई, उस एरर को मैं देखूंगा कि किस वजह से एरर आ रही है। अगर यहाँ पे मैंने देखा 4 × 5 × 3, इस 3 को अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, माइनस वैल्यू दे दूँ, लेट्स इसको -20 दे दूँ, तो मेरी ये 4 और 5 जो मैंने लिए थे वो मेरे काम कर जाएंगे, तो मेरा -20 मेरा सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा 5 4 -20 पे मेरा कोड काम कर जाएगा सारे इसके लिए, करेगा कि नहीं करेगा। अब लेट्स से 0 1 पे क्या देखते हैं, ये मेरा 0 हो गया, ये 4 हो गया, ओके, लेकिन ये -20 अभी मेरा फेल हो गया, तो कभी ये क्या 0 देगा, उसको देना चाहिए 1, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा ये वेट मेरा बड़ा होना चाहिए, तो लेट्स से मैं क्या कर दूंगा, इससे बड़ा होना चाहिए या मोर लेस सेम होना चाहिए, तो मैं इसको लेट्स से 30 कर देता हूँ। तो इस तरह से जो मैं मैनुअली जो मैं वेट एडजस्ट कर रहा हूँ, यही आपकी एल्गोरिथम इसको ऑटोमेटिकली करती है, कि मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट केस में मेरे कैसे मैं वेट सेट करूँ, एक्चुअली कैसे एडजस्ट करूँ कि आउटपुट मेरा ट्रेन डाटा के हिसाब से मेरा आ जाए। तो इसी तरीके से एग्जैक्टली आपके मॉडल ट्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग, मॉडल ऑफ द ट्रेनिंग। वो आउटपुट को देखेगा, नई आउटपुट आ रहा है, वेट को एडजस्ट करेगा, फिर सेकंड रिकॉर्ड आएगा, देखेगा अभी भी काम नहीं कर रहा, फिर वेट एडजस्ट करेगा, तो वेट को जनरलाइज रखेगा कि मोर और लेस आप क्या होगा, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड के लिए आपका आउटपुट मोर लेस आपका हाईएस्ट एक्यूरेसी अचीव कर ले, वो यानी कि लॉस आपका मिनिमम हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा लेट्स आपके पास 2 मिलियन रिकॉर्ड्स है तो सबको सबके सबको सही क्लासिफाई कर देगा,
लेकिन इट विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द एक्यूरेसी कि मैक्सिमम को ये वेट को इस तरह से एडजस्ट करेगी मैक्सिमम रिकॉर्ड्स को ही क्या करे सही क्लासिफाई कर पाए, उस हिसाब आपके आपके वेट ट्रेन होते चले जाते हैं। यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल? ऐसे ही आपके एक्सॉर का है सेम तरीके से, दिस योर एक्सॉर। एक्सॉर में क्या होता है आपका ए बी बार ए बी, ये आपका एक्सॉर फंक्शन होता है, दिस वन ये आपका फाइनल आउटपुट है। तो अगर आप इसको देखोगे तो मैंने क्या किया, दिस माय इनपुट। अब मैंने दो न्यूरॉन ले लिए हैं। दो न्यूरॉन मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि ईच एंड एवरी न्यूरॉन मेरा, एक न्यूरॉन मेरा ये कैलकुलेट करेगा, एक न्यूरॉन मेरा ये कैलकुलेट करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने क्या कर दिया, अपनी एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो मेरा क्या करेगा, आप एक तरह से देखो तो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरा क्या करता था, कुछ पैटर्न फाइंड आउट करता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इतने सारे लॉजिस्टिक रिग्रेशंस को लेयर अप्रोच में रख दिया है। तो जो मेरा एक सिंगल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो मेरा लर्न कर रहा था, उसके कितने मल्टीपल्स ऑफ द टाइम्स मेरा टोटल न्यूरल नेटवर्क लर्न करेगा डिफरेंट पैटर्न्स। तो ये इस केस में ये न्यूरॉन क्या लर्न करेगा, सिर्फ ये वाला पैटर्न लर्न करेगा, दिस वन। और ये वाला न्यूरॉन क्या लर्न करेगा, सिर्फ ये वाला पैटर्न लर्न करेगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सम कर दूंगा और फाइनली मुझे फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसा समझो कि मोल है जो मेरी एनसेम्बलिंग टेक्निक थी, एनसेम्बलिंग टेक्निक में मेरा एक मॉडल डिफरेंट पैटर्न लर्न करता था, दूसरा मॉडल डिफरेंट पैटर्न लर्न करता था, तीसरा मॉडल डिफरेंट पैटर्न लर्न करता था और लास्ट में उनकी एनसेम्बलिंग करता था। तो मोरलेस यहाँ भी मोरलेस सेम है। मैंने एक प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम से कन्वर्ट कर दिया। एक न्यूरॉन मेरा अलग पैटर्न लर्न करेगा, दूसरा मॉडल मेरा अलग पैटर्न लर्न करेगा। इन सबको मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ईयर पे उनकी लर्निंग को कंबाइन कर दूंगा और वो टोटल टोटल फिर से कुछ नई लर्निंग करते जाएंगे और आगे मुझे क्या करते जाएंगे, वो लर्निंग मेरी क्या हो जाएगी, एनहांस और एनरिच लर्निंग मेरी होती चली जाएगी। और लास्ट में जो मेरे पास जो फाइनल लर्निंग मेरे पास आएगी, उससे मैं क्या करूंगा, आपका आउटपुट दे दूंगा। ये मैं दूसरी टर्म में इसको समझूं तो आप ये समझ सकते हो कि मैं इंपॉर्टेंट फीचर्स लर्न कर रहा हूँ, मैं फीचर इंजीनियरिंग करता हुआ जा रहा हूँ, जिसको मैं कह रहा था कि डीप लर्निंग मुझे फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक आप इस तरह से समझ सकते हो कि मेरा जो आउटपुट है y a b बार प्लस a बार b है। तो एक्चुअली में देखो मेरे फीचर्स कौन कौन सी, a और b हैं। इसने क्या किया, a और b को कंबाइन करके दो अलग फीचर्स बना ली, a b बार और a बार b। और इन जो इसने नई फीचर्स बनाई है, इन नई फीचर्स के ऊपर क्या करता है, फाइनली प्रेडिक्शन करता है इन दोनों को सम करके। तो दीज आर a b बार और a बार b, दीज आर द न्यू फीचर्स जो एक्चुअली मेरी फीचर इंजीनियरिंग है। तो मेरी दीज x1 और x2 मेरी रॉ फीचर्स थी, उसको उसने क्या किया, a b बार और a बार b नई फीचर्स बनाई और उन फाइनल फीचर्स के ऊपर फाइनल प्रेडिक्शन देगा। ये मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर मैं नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाता तो क्या करता, इन दोनों के ऊपर प्रेडिक्शन मारता, लेकिन मेरा एनन किसको प्रेडिक्शन मार रहा है, जो सेकंड लेयर जो नए फीचर जनरेट किए हैं उस फीचर के ऊपर मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम कर रहा है। तो ईच एंड एवरी लेयर इज एक्चुअली मेकिंग द मोर and more intelligent and more useful features that is actually part of the feature engineering। तो आपकी जितनी भी hidden layers होती हैं वो सारी आपकी फीचर एक्सट्रैक्ट करती हैं एक्चुअली, उसको फीचर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं या आपकी फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। और आउटपुट लेयर उस फीचर को यूज करके आपका प्रेडिक्शन मार देती है और ये आपका इनपुट है। ओके, सो यू कैन इंट्यूट इन ए लॉट ऑफ टर्म्स। आप इसको एनसेम्बलिंग तरह से भी समझ सकते हो, आप इसको ये भी समझ सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करता जा रहा हूँ और फाइनली उनकी जो लर्निंग है उनको सम अप कर रहा हूँ, जस्ट लाइक एनसेम्बलिंग। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बेसिकली आप इसको बेसिकली आप फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ईच एंड एवरी लेयर पे आप अलग अलग फीचर्स लर्न कर रहे हो और उनकी लर्निंग को कंबाइन करते हो जा रहे हो। तो आप हर लेयर पे आप डिफरेंट नई फीचर अराइव कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, हाउस प्रेडिक्शन की प्रॉब्लम है, मेरे पास क्या क्या है, लेट्स से मेरे पास एक है हाउस क्वालिटी, लेट्स से एक फीचर है मेरे पास, एक लेट्स से मेरे पास फीचर है आपका स्विमिंग पूल क्वालिटी, ओके। और लेट्स से सेकंड फीचर मेरे पास है एरिया, यानी कि आपका ग्राउंड एरिया की है। लेट्स से आपका दूसरा आपकी फीचर होगी लेट्स से स्विमिंग पूल एरिया, ओके। लेट्स से आपकी और आपके आगे सेकंड फ्लोर एरिया, ओके। लेट्स से आपके पास 5 फीचर्स हैं। मैं अगर नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन लगाऊंगा तो क्या करेगा, इन सब फीचर को अलग अलग कंसीडर करेगा, ओके। लेकिन अगर मैं मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग करूँ तो मुझे एक चीज समझ में आएगी कि अगर मैं हाउस क्वालिटी और स्विमिंग पूल क्वालिटी को मिला के एक फीचर इंजीनियरिंग बना सकता हूँ, एक अलग फीचर बना सकता हूँ, फीचर 1 इसको बोल दूंगा। ऐसे में क्या करूंगा, एरिया, सरफेस एरिया और सेकंड फ्लोर एरिया को बना के मैं एक अच्छी फीचर बना सकता हूँ जिसको मैं बोल दूंगा एक्चुअली में एरिया। तो मैंने एक्चुअली मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग कर दी। और ये इसको कैसे ऑटोमेटिक कर देता है, ये कैसे ऑटोमेटिक करेगा,
फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, फोर्थ न्यूरॉन, फिफ्थ न्यूरॉन, ये मेरा इनपुट है, ठीक है ना। ये मैंने 5 न्यूरॉन लगा लिए, सेकंड में लेट्स में 5 न्यूरॉन ले लिए, लेट्स से और लेट्स मैंने 4 न्यूरॉन्स ले लिए फॉर एग्जांपल। ओके, तो ये क्या करेगा, ये सारी की सारी फीचर इस पे भी जा रही है, इस पे भी जा रही है, सारी फीचर इस पे जा रही है। तो ये क्या करेगा, इस न्यूरॉन ये इंटेलिजेंटली काम करेगा इस तरीके से कि मैं किस तरह से फीचर्स को मैं क्या करूं, कंबाइन करूं कि फाइनली मुझे बेसिकली मेरा आउटपुट करेक्ट आना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इट फर्स्ट न्यूरॉन विल ट्राई टू कंबाइन हाउस क्वालिटी और आपकी स्विमिंग पूल क्वालिटी। तो इनको कंबाइन करके क्या करा देगा, एक अलगली फीचर बना देगा जिसमें जो जहां से आउटपुट जाएगा उस आउटपुट में बेसिकली हाउस क्वालिटी और आपकी स्विमिंग पूल क्वालिटी का ज्यादा वेटेज होगा, इन सबका बहुत कम होगा। तो ये बेसिकली ये आपकी फीचर क्रिएट हो गई आपकी, बेसिकली ये जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी, एक अलग इसने नई फीचर बना दी। वो कैसे होगा, आपके बेसिकली इसके लिए वेट ज्यादा कैलकुलेट होंगे, इसके लिए वेट ज्यादा कैलकुलेट होंगे, इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए वेट बहुत कम कैलकुलेटेड होंगे। तो फाइनल जो आउटपुट आएगा उसमें वेटेज किसका होगा, वो फीचर किसकी बनी हुई होगी, हाउस क्वालिटी की और स्विमिंग पूल क्वालिटी की। तो नई फीचर से बना दी। ऐसे हो सकता है ये सेकंड वाला क्या करेगा, ये आपका एरिया और आपका स्विमिंग और आपका फर्स्ट फ्लोर एरिया, स्विमिंग एरिया, इन तीन को मिलाकर आपकी एक एरिया नई फीचर बना देगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सबके वेट, ये तीन वेट ज्यादा लर्न होंगे और हाउस क्वालिटी और से वेट कॉरस्पॉन्डिंग कम लर्न होंगे। तो यहाँ से जो नई फीचर आएगी, दिस इज ए नाइस एक्सट्रैक्टेड फीचर, और अगली लेयर क्या करेगी, इन एक्सट्रैक्टेड फीचर के ऊपर काम करेगी, फाइनल में क्या करेगी, मुझे आउटपुट देगी। So you can understand the deep neural network, a combination of different models like an ensembler, जिसके different learning को हम ensemble कर रहे हैं, और you can understand each and every layer is actually creating or actually engineering the more interesting and more useful features, which are actually going to help us to make the final prediction at the last layer. ये concept समझ में आया? अभिषेक, अभिनव, तपस? सो दैट इज वाई जो आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं, इसलिए उसमें कहा जाता है कि इसमें आपको फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोर लेस क्या करते हैं कि ईच एंड एवरी लेयर पे आपकी फीचर खुद से जनरेट करते हुए चला जाता है। इसलिए आपको ये दिस इज आल्सो कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन, या ईच एंड एवरी लेयर पे आप अच्छी फीचर आप क्रिएट करते हुए जा रहे हो। तो आप न्यूरल नेटवर्क को आप एज ए कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगह हम लोग क्या करते हैं, लेट से मुझे कोई एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम, इसके ऊपर मुझे क्लासीफाई करना है, तो मैं उस पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लगा के मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लगाया और लेट्स उसमें सिर्फ मैंने आउटपुट लेयर नहीं लगाई जो मेरे प्रेडिक्शन देने का काम करती है। मैं सिर्फ उससे पहले तक मैंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लगाया जिसने कि मुझे लास्ट लेयर तक मुझे बहुत सारे अच्छे फीचर एक्सट्रैक्ट करके उसने मुझे दे दिए। तो आउटपुट लेयर से जस्ट पहली वाली लेयर, ये जो लेयर है, इट इज एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक इसने बहुत अच्छे फीचर मेरे लिए क्रिएट करके दे दिए हैं, बहुत बेहतरीन फीचर इससे मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दिए हैं। और लास्ट में अगर मैं देखूं बाइनरी क्लासिफिकेशन किससे हो रहा है, मेरा लॉजिस्टिक्स से हो रहा है। अब मुझे पता है लॉजिस्टिक्स से बेटर क्या है, तो या बाकी के एल्गोरिथम लॉजिस्टिक्स से बेटर है, एसवीएम अगर इससे बेटर है, लॉजिस्टिक्स से आपकी बूस्टिंग टेक्निक्स इससे बेटर है, तो मैं क्या करूंगा लास्ट लेयर पे मैं ये हटा के इस सारे जो मेरे फीचर एक्सट्रैक्ट हुए हैं उसको ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक्जीबूस्ट भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे एसवीएम भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे बाकी कोई भी एल्गोरिथम लगा सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने क्या किया, मैंने नई फीचर एक्सट्रैक्ट कर लें यूजिंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ मेरी सारी हिडन लेयर एक्चुअली इज वर्किंग फॉर द फीचर एक्सट्रैक्शन। इसलिए आप जो फीचर एक्सट्रैक्शन जो आप वर्ड सुनते आ रहे हो इतने दिनों से, जैसे वो न्यूरल नेटवर्क पर फीचर एक्सट्रैक्शन का काम करता है। आउटपुट लेयर हटा दो और उससे पहले लेयर का जो भी आउटपुट आ रहा है दैट इज एक्चुअली योर मोर यूजफुल और मोर इंटरेस्टिंग फीचर, जिसको आप किसी भी एल्गोरिथम फिर यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे कैगल कंपटीशन में आप देखोगे तो वो क्या करते हैं, लास्ट के लेयर को हटा देते हैं और उसके हिसाब से आपका बूस्टिंग टेक्निक लगा देते हैं, वो और ज्यादा, क्योंकि लास्ट वाली लेयर सिर्फ आपका क्या काम कर रही है, सिर्फ क्लासिफिकेशन काम कर रही है। तो आप उसमें क्लासिफिकेशन में आप एक्जीबूस्ट लगा लो, एसवीएम लगा लो, या कोई और एल्गोरिथम लगा दो, कुछ भी। तो बहुत सारे लास्ट लेयर पे आपका सिर्फ सिंगल न्यूरॉन लगा के उस पर एक्जीबूस्ट भी लगाते हैं, बहुत सारे लोग लाइट एसवीएम भी लगाते हैं। तो डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि आपकी पास नई फीचर आ गई, उस नई फीचर को आप कैसे भी यूज कर लो। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक्चुअली में पर्पस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है, दैट इज फीचर एक्सट्रैक्शन। लास्ट लेयर सिर्फ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन सिर्फ आपको आउटपुट के लिए काम हो रही है, वो लास्ट लेयर आप कैसे भी यूज कर सकते हो। आप लास्ट लेयर तो आपकी आउटपुट लेयर एनएन की लेयर भी हो सकती है या कोई अलग एल्गोरिथम भी हो सकती है। ओके, उसमें कोई आपकी कंडीशन नहीं है। ओके, वो लास्ट लेयर आप कुछ भी लगा सकते हो, एनएन की लेयर लगा दो या तो एक आउटपुट लेयर, या कोई भी नई एल्गोरिथम लगा दो अपनी मर्जी के हिसाब से। ओके, या आप ऐसा भी काम कर सकते हो, और आप क्या काम कर सकते हो, आप ये भी काम कर सकते हो कि आपने एक एनएन लगाया
आपने एक दूसरा एनएन लगाया डिफरेंट आर्किटेक्चर, आपने तीसरा डिफरेंट आर्किटेक्चर लगाया, यहाँ से एक आपके एक्सट्रैक्टेड फीचर्स आ गई, यहाँ से एक्सट्रैक्टेड फीचर्स आ गई, यहाँ से एक्सट्रैक्टेड फीचर्स आ गई। इन तीनों को आपने क्या कर दिया, कंबाइन करके या तो इनको ऑगमेंट कर दो या इनको आप इनकी अनसैम्पलिंग कर दो और फाइनल आउटपुट आप फिर वहां से दे दो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो आपके पास 3 डिफरेंट फीचर्स आ गए। ये एक तरह से क्या हो गया आपका, आप जो स्टैकिंग कर रहे थे, स्टैकिंग या अनसैम्पलिंग ही है, लेकिन हम वो किसके थ्रू कर रहे हैं, हम लोग एएनएन के थ्रू कर रहे हैं। ओके, सो एएनएन के थ्रू का आप एएनएन के आउटपुट को किसी भी तरीके से, जब हम इसको देखेंगे लास्ट में देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अनसैम्पलिंग में या स्टैकिंग में। ओके, जिसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो हमने देखे थे। ये आपका नॉर्मल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। अभी तक आपने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं उन सब पे आपका ये काम कर जाएगा। एवरी न्यूरल नेटवर्क, सो एवरी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो अभी तक आपने कवर किया, क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लासिफिकेशन या व्हाटएवर, उन सब पे आपका एएनएन आपका बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। ओके, प्रॉब्लम आती है आपकी जब आपकी प्रॉब्लम्स कंप्यूटर विजन की हो जाती हैं या आपकी एनएलपी की हो जाती हैं। तो उस केस में नॉर्मल एएनएन आपका इतना अच्छा काम नहीं करता, यू नीड अ डिफरेंट आर्किटेक्चर। सो उस केस में इसी का डिफरेंट आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, वो आपका इस तरीके से काम करता है। अभी आपको थोड़ा देखने में अजीब लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसको हम बाद में समझेंगे, इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। ऐसे ही एनएलपी के लिए आपका जाता है डिफरेंट, जिसको हम बोलते हैं आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये डिफरेंट तरीके से काम करता है। ओके, सो इसके अलावा आपका गैन भी होता है, आपका जेनेटिव एडवर्सल नेटवर्क भी होता है, ठीक है, और आपका एनकोडर डिकोडर भी होते हैं। ओके, इनफैक्ट आपके अटेंशन मॉडल्स भी होते हैं, आपका बर्ड भी आ जाता है, बहुत सारे हैं। ओके, लेकिन दीज आर द 2 मेजर्स वन, सीवी एंड एनएलपी, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप सारी प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ एएनएन अप्लाई करना है। सर इनमें और रीइंफोर्समेंट लर्निंग्स में क्या फर्क होता है? डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपका जो भी आपका आउटपुट आता है, ठीक है ना, उस आउटपुट के हिसाब से आप यहाँ पे आपको जो एरर आ रही है उस एरर के हिसाब से आप क्या करते हैं, मॉडल को रीट्रेन करते हो, ठीक है। वहां पर ट्रेनिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है। वहां आप क्या करते हो कि वहां बेसिकली अगर आपका आउटपुट गलत आ रहा है तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप अपने मॉडल को हाईली पनिश करते हो। और आपका मॉडल अच्छा रिजल्ट दे देता है तो आप उसको क्या करते हो, हाईली रिवार्ड करते हो। जैसे आप सारी वीडियो गेम बेसिकली रिइंफोर्समेंट लर्निंग के हिसाब से बनते हैं। जैसे कि अगर आप अच्छा खेलोगे तो आपको नई चांस मिलती चली जाएगी, आपको नई चांस मिलेगी, वो मिलेगी, तो दिस काइंड ऑफ यू कैन से आपको इंसेंटिव मिलते चले जाते हैं। अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो आपकी एक चांस मर जाएगी, तो आपको बेसिकली उसने डीमोटिवेट कर दिया। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक्चुअली आपके इस तरह से काम करती है। उसमें आपके कुछ आपके एक्शंस होते हैं, उस एक्शंस के साथ रिवार्ड और पनिशमेंट उसके साथ अटैच होते हैं। ओके, जो कि आपके डीप लर्निंग में नहीं होते इतना। वहां पे आप बहुत ही हाईली वो एकदम डिस्क्राइबेबल होते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आप करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो डीप वो डिफरेंट तरीके से काम करती है। जैसे कि आपकी ये लर्निंग होती है आपकी ऑटोमेटिक कार की, आपकी इन्फोर्समेंट लर्निंग है। अगर आपका कार अगर आप बहुत अच्छा काम किए दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर कार ने एक्सीडेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो बेसिकली आप पूरा मॉडल रिटेन हो जाता है, बहुत ही हाईली उसको बहुत ही हाईली आप क्या करते हो, पेनलाइज करते हो उसको। अगर आपने ऐसा आपने एक्सीडेंट कर दिया तो हाईली पेनलाइज, पूरा मॉडल ऑलटुगेदर पूरा चेंज हो जाता है उस हिसाब से। ओके, सो डीप लर्निंग में इतनी ज्यादा पेनल्टी आप नहीं करते हो। ओके, और वहां पे रियल टाइम आपको पेनल्टी मिलती है, यहाँ पे रियल टाइम पेनल्टी नहीं मिलती। यहाँ पे ये है कि बेसिकली आप केवल ट्रेनिंग टाइम पे आप पेनल्टी देते हो और वही बहुत कम। वहाँ पे रियल टाइम पेनल्टी होती है और आप मॉडल आपका ऑल टुगेदर ऑन द स्पॉट ट्रेन हो जाता है। आपने कोई भी एक्सीडेंट किया, मॉडल रिटेन हो जाता है, उसी टाइम का रिटेन हो जाता है। तो आपकी रियल टाइम आपका फीडिंग होती है उसमें रिइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, अभी तक जो आज पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, बाकी एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग देखेंगे एक तो आपका जो हम कह रहे थे कि बैक प्रोपगेशन के थ्रू आपके वेट कैसे लर्न होते हैं। वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट। ओके, उससे एग्जांपल करेंगे आपका। फिर हम देखेंगे आपके डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस कौन से होते हैं, क्या प्रोस एंड कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा यूज नहीं करना चाहिए। ओके, वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली आपका नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, जब बात कर रहा हूँ कि आपका एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियर होने चाहिए, उसका क्या मतलब है, वेट कैसे इनिशियलाइज करोगे, फिर आपका बहुत सारी चीजें हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, सो कल हम लोग वी विल ट्राई टू फिनिश दैट। आई थिंक कितनी स्लाइड्स और बची हैं, आई थिंक इसमें 100 से ऊपर स्लाइड्स हैं। नहीं कम, वी हैव 98 स्लाइड्स। So we will tomorrow we will try to have a bigger class,
कल हम एक बड़ी क्लास को ट्राई करेंगे, जिससे कि मैं चाह रहा हूँ कि कल आपकी थ्योरी ANN की आपकी खत्म हो जाए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास से आप पूरा नेक्स्ट वीक हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे। तो आपका एक्जीबूस वाला कोड भी रह गया है और इसके ANN के भी हम सारे कोड करेंगे। तो कल आई वांट टू फिनिश अप द थ्योरी, सो कल आप थोड़ा सा टाइम लेके चलना। तो कल आपकी क्लास हम लोग थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्या तपस? और हाँ सर, I'm okay. सो कल विल ट्राई टू हैव द क्लास एट 11 o'clock। ओके, तो 11 o'clock करने का हमें फायदा ये हुआ कि हमारे पास ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो वी कैन फिनिश इट ऑफ, क्योंकि कल इसमें 3 घंटे लग जाएंगे हमको। लेकिन 3 घंटे